تھوڑا جا بھی لیپ ٹاپ ایزی ہے ویسے لیکن ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟਅਪ ਪਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام مصطفیٰ آئی ڈی تو محسن علی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے جی؟ کھانا شانا کھا لیا جی؟ ویلکم کرنا جی، ساتھ بسم اللہ جی آیا نو۔ غلام مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اردو کہانی 2.0 ایم کہہ رہے کہ جی ماشاءاللہ قاری صاحب ویلکم کرنے جناب، ساتھ بسم اللہ جی آیا نو۔ بندہ نہ چیز دی لائف دے اندر اور سناؤ قبلہ طبیعت سے ٹھیک ہے جی؟ اردو کہانی طبیعت صحت مزاج کیسے؟ ناصر رحمان کہہ رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساتھ بسم اللہ سارے نو جی آیا نو جی ویلکم مرحبا۔ اور سنائیں نمان بھائی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اور سنائیں باقی طبیعت سے سارے سناؤ جی اپنا حال احوال۔ اور کھانا تقریباً سارے دا ہو گیا ہونا ہے، میں تو کیونکہ ہوں پہنچیا ڈیوٹی تو ڈیوٹی تو آ کے فوراً کھانا کھادا، پہلا کام یہی ہے۔ کھانے تو فوراً بعد بس پھر لائف سٹارٹ کی تھوڑی دیر میں کہ چلو حال احوال ہو جائے۔ اردو کہانی کہہ رہے کہ قاری صاحب پہچانا ہے یا نہیں؟ ساریاں گلاں دسنا بابیو، کیا تو ہے کہ شکریہ بندہ نہ چیز دی لائیو چان واسطے بابے، ہن کی کریے پھر، ہن تھوڑے جے سبسکرائبر رہ گئے ہو جان گے پورے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ ہن تے شاید کوئی 10-12 سبسکرائبر رہ گئے ہون گے۔ ایف کلر کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساتھ بسم اللہ جی آنو بسم اللہ۔ میرا ویر آیا، راشد علی ویر آیا، کہہ رہے کہ جی السلام علیکم بھائی جان، لائک ڈاؤن بہت مہربانی شکریہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساتھ بسم اللہ جی آنو ویلکم مرحبا۔ اور راشد علی ویر بھائی سناؤ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بچے سب کاروبار سب خیر وفیت ہے؟ اور اپنی طبیعت دا سناؤ خصوصی طور تے کہ تہاڈی طبیعت کس طرح رہندی ہے اج کل؟ اور اردو کہانی ہن تہاڈا میں نام لواں جے بس انج ہی کم چلے گا؟ ہن تسی دسو گل کوڈ ورڈ چ رہے گی کہ یا کرنی پے گی تھوڑی وضاحت؟ دسو پھر ذرا تہاڈا پھر حال وال کریے۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ کرے، لگتا ہے کہ سبسکرائبر تقریباً پورے ہو گئے ہونے ہیں۔ ناصر رحمان کہہ رہے ہیں کہ اور سنائیں بھائی ٹھیک ہے جی؟ شکر الحمد للہ کا کرم ہے نمان بھائی، آپ سنائیں آپ کی طبیعت سے ٹھیک ہے؟ گھر میں سب خیر وفیت ہے؟ عبداللہ اینڈ سبلنگ فن کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساتھ بسم اللہ جی آیا نو۔ اور راشد بھی کہہ رہے ہیں کہ آج تو لگتا ہے بھائی جان نے بہت زیادہ کریم لگا لی ہے۔ نہیں 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 میرے پیارے بھائی، میں کوئی کریم نہیں لگائی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر لائٹ جڑی ہے وہ بھی چل رہی وائٹ کلر دی، اور جڑا سوٹ پہنے ہوا وہ بھی وائٹ کلر۔ میں تے جدوں دی ہوش سنبھالی ہے نا اپنی زندگی دے وچ کریماں اور فیشل وغیرہ تقریباً 30 سالاں دے وچ نا، چلو تسی پہلے 10 سال 12 سال بچپن دے گزار دو، اس تو بعد جڑا ہے لگا لو کوئی اپنا 18 سال یا 15 سال چلو تسی لا لو، تو دے وچ میرے خیال ہے اجے تک کوئی 10 واری بڑی مشکل نال لائی ہونی۔ کریماں کروماں والے کماں نہیں جاندے اسی۔ اور سناؤ باقی سب خیر وفیت ہے؟ اچھا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبداللہ سبیلنگ کے ساتھ ساتھ لائک ڈاؤن بہت مہربانی شکریہ۔ اردو کہانی کہہ رہے ہیں کہ اوکے ہو گیا، ہاں جی ہاں جی اردو کہانی
राशिद अली वीर कह रहे हैं कि जी अभी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक तुहानू सेहत देवे जी। साडी दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब दे सदके दे कदमां दी खिरात दा सदका अल्लाह पाक तुहानू शिफाए कुल्ली अता फरमावे। और केड़े ने जी शुभू गेमिंग कह रहे हैं कि हाय वेलकम। अब्दुल्ला साथ हैं और उर्दू का नहीं कह रहे हैं कि नहीं यारा 960 हैं अभी। चलो जी अल्लाह पाक खैर करे कि दोबारा फिर कोई सिस्टम बनाने हैं, धक्का लगाने हैं, तुहाडे सब्सक्राइबर पूरे कराने हैं इंशाअल्लाह। राशिद अली वीर कह रहे हैं कि सांसों का सफ़र तुमसे तुम तक, हाँ मेरी मोहब्बत भी तुमसे तुम तक। जज्बा इश्क सच्चा ना होता तो रास्ता बदल लेते, मेरे रास्तों का गुजर तुमसे तुम तक। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। क्या बात है, क्या बात है जी। अब्दुल्ला सिबलिंग मुस्कुराते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद अली भी साथ साथ। और आशीष तिवारी कह रहे हैं कि आप कहाँ से हो बेटा? जी मैं पाकिस्तान सूबा पंजाब से हूँ जी। मुज़फ़्फ़र ज़मान कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम जनाब मुज़फ़्फ़र ज़मान बंदा नचीज़ दी लाइव ते आने वास्ते बहुत शुक्रिया जी। वेलकम करने सब बिस्मिल्लाह जी आन मरहबा। और राशिद भी कह रहे हैं कि मोहब्बतों की कैदियों, मोहब्बत के कैदियों को ज़ंजीरों की क्या ज़रूरत, मोहब्बत अगर दिल में हो तो तस्वीरों की क्या ज़रूरत। क्या बात है, बहुत खूबसूरत राशिद अली वीर भाई। नासिर रहमान कह रहे हैं कि ठीक है भाई मोबाइल की बैटरी कम है, कोई मसला नहीं जी, बहुत शुक्रिया आने के लिए। मुज़फ़्फ़र ज़मान कह रहे हैं कि लाइक डन जी, बहुत मेहरबानी शुक्रिया आपकी, मोहब्बतों का अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और सुनाए मुज़फ़्फ़र भाई आपकी तबीयत सेहत मिजाज कैसे हैं? आशीष तिवारी कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम करते हैं जी सत बिस्मिल्लाह जी आयानु। आशीष तिवारी आपने हमें कहाँ से ज्वाइन किया है बताइएगा ज़रा। और राशिद भी कह रहे हैं कि साथ भाई क्या हाल चाल है, ठीक हो? राशिद भी कह रहे हैं कि वो मुझसे पूछ रहे हैं मेरे चेहरे पे रौनक का सबब, उन्हें बताओ कि हाज़ा हुवल नूरुल हब, ये मोहब्बत की रोशनी है। अगर मैं अरबी पढ़ने में कोई गलती होगी तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और आशीष तनवारी कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह आमीन आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। और अब्दुल्ला सिबलिंग कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई आप कैसे हैं? तनवीर फैसल कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम न्यू आने वालों को वेलकम सत बिस्मिल्लाह जी आया नु। और अब्दुल्ला साथ साथ सपोर्टिंग मैसेज। राशिद भी कह रहे हैं कि भाईजान मेरी तो अभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अल्लाह पाक करम करे। राशिद अली वीर भाई वही दिल वाला मामला या कोई वैसे मौसम की वजह तो कोई तबीयत ख़राब है? सलमान कह रहे हैं कि थैंक्स। तनवीर भाई कह रहे हैं कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ जी। जज़ाकल्लाह जी, आप खाना खाएँ, अल्लाह पाक खाने को आपके लिए रहमत बनाए और आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो। और ज़नफ़र मान कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाओ? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मैं भी ठीक-ठाक हूँ। ज़नफ़र भाई ड्यूटी पे जा रहे हैं या नहीं? और कौन-सी ड्यूटी चल रही है बताइएगा? अब्दुल्ला सिबलिंग साथ-साथ हैं। और आशीष तिवारी कह रहे हैं इंडिया मधाया इंडिया मध्य प्रदेश से हैं। ठीक होगा जी, वेलकम जी, आपका वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया इंडिया से आने वालों का। और राशिद भी कह रहे हैं कि कागज़ पर नहीं लिखते हैं हम राज अपनी मोहब्बत के, पल भर में बिखर जाते हैं अल्फाज मोहब्बत के, तुझे टूट कर चाहा है और उम्र भर चाहेंगे, ऐसे ही जाना हमारे अंदाज मोहब्बत के। क्या बात है जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और स्टिल गेमिंग कह रहे हैं कि जूस पिला दो मौसम्मी का। ठीक है जी, आप आएँ जी, आपको जूस पिलाते हैं जी, जूस हाज़िर है। अब्दुल्ला सिबलिंग कह रहे हैं, स्टिलिंग गेमिंग आपको वेलकम करते हैं अपनी लाइव में। और अब्दुल्ला साथ-साथ हैं। अबू बकर शहज़ाद कह रहे हैं कि माय नेम इज़ अबू बकर शहज़ाद चकवाल से। जी वेलकम अबू बकर, आपका साथ बिस्मिल्लाह। और आशीष तिवारी कह रहे हैं कि भाईजान आपका निकाह हो गया क्या? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा निकाह हो गया है जी। अब्दुल्ला सिबलिंग का सपोर्टिंग मैसेज अबू बकर कह रहे हैं कि अबू बकर शहज़ाद चकवाल से। जी, जी वेलकम आपका। शरारती बच्चा कह रहे हैं कि लॉकडाउन वेलकम शरारती बच्चा। और अब्दुल्ला सिबलिंग साथ-साथ हैं। नमी भाई वेलकम जी। और अब्दुल्ला सिबलिंग साथ-साथ हैं। सपोर्टिंग मैसेज बहुत मेहरबानी शुक्रिया। अबू बकर कह रहे हैं कि सोनी अली चौधरी टीचर को अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमी भाई कह रहे हैं कि मैसेज बहुत लेट पढ़ रहे हैं आप। जी, बीच में कोई मैसेज आ देते हैं लंबे-लंबे, वो पढ़ते-पढ़ते फिर वो हो जाता है, स्पेस हो जाती है, वक़्फ़ा आ जाता है। ज़मान कह रहे हैं कि जनरल ड्यूटी है। जी, ओके हो गया। अबू बकर कह रहे हैं कि अबू बकर शहज़ाद चकवाल ठीक हो गया। शरारती बच्चा कह रहे हैं कि चाचू अस्सलाम वालेकुम। सत सत्ती अकल
हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने सत श्री अकाल कहा है तो फिर मेरी तरफ से भी आपको सत श्री अकाल। और अबू बकर साथ-साथ हैं, अब्दुल्ला सिबलिंग नमी भाई साथ-साथ हैं, सपोर्टिंग में से बहुत मेहरबानी शुक्रिया। राशिद भी कह रहे हैं कि जब माँ छोड़कर जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब बाप छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। या अल्लाह सबके वालिदैन को सलामत रखना, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कोई शक नहीं राशिद अली वीर भई ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਲਾਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ मैं मैसेज देख रहा हूँ कोई नाल अगर कोई रह ना जाए, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਨਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ, मेरा फेवरेट कलाम है। अबू बकर कह रहे हैं कि अंकल मोहम्मद नईम व्लॉग सेंड मी। व्लॉग अभी आ नहीं रहे, अभी लाइव कर रहा हूँ। अबू बकर कह रहे हैं कि गुड बहुत मेहरबानी। राशिद भी कह रहे हैं कि अगर वक्त मिले दो पल का तो हाल पूछ लेना, अगर ज़िंदगी परेशान करे तो सवाल पूछ लेना, और जिन्होंने सिखाया है पैरों पर चलना कभी उन माँ बाप का भी ख्याल पूछ लेना, हाल पूछ लेना। ज़बरदस्त, क्या बात है जी। जिनके माँ बाप ज़िंदा है ना, वो अपने माँ बाप की कदर किया करें, बाद में फिर बहुत पछताते हैं। अभी तो हमें पता नहीं होता इस चीज़ का, लेकिन बाद में हमें पता चलता है जब माँ बाप ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। अबू बकर कह रहे हैं कि जहाँ ज़ेब शहजाद मेरी पापा दुबई वालों को सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुबई वालों को पाकिस्तान से चकवाल से सलाम जी। अबू बकर शहजाद कह रहे हैं कि इमदाद हुसैन को सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला साथ साथ हैं, और राशिद अलवीर कह रहे हैं कि अगर तुम 70 साल तक खाना काबा का तवाफ़ करके उसकी नेकियां माँ बाप को हदिया करते रहें, तब भी तुम आंसू के उस कतरे का बोझ हल्का नहीं कर सकते जो तुम्हारी बसलूकी की वजह से हमारे माँ बाप की आंख से गिरा था। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। शीश तिवारी कह रहे हैं कि भाईजान आपसे मिलने के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा पाकिस्तान में, थोड़ा हमें बताएंगे। आप पाकिस्तान आएँ, हम आपको वेलकम करेंगे। आप पाकिस्तान आकर हमसे रब्ता करना, हम आपको खुद रिसीव कर लेंगे। नमी भाई साथ-साथ हैं, हरबाज़ खान कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरबाज़ खान सब बिस्मिल्लाह जी, आया हूँ, वेलकम। मुज़फ़्फ़र उस्मान कह रहे हैं कि जनरल ड्यूटी मैसेज बहुत लेट पढ़ रहे हैं आप। और अबू बकर कह रहे हैं कि मोहम्मद नईम आप चकवाल लिया मेरे पास। नवी भाई कह साथ-साथ हैं, और सपोर्टिंग मैसेज आ रहे हैं सबके। भाई मैं आप पीछे हूँ। अच्छा जी, नमी भाई और अब्दुल्ला साथ-साथ हैं, सपोर्टिंग में से बहुत मेहरबानी शुक्रिया। अबू बकर कह रहे हैं कि नमी भाई व्हाट्सएप बोला, अच्छा व्हाट्सएप से बोला, और व्हाट्सएप पे आप लोग का नंबर मेरे पास है। अरबाज़ खान कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़फ़्फ़र उस्मान कह रहे हैं कि जब तुम देखोगे अपने पसंदीदा शख्स को किसी और के साथ, तब तुम समझोगे खुदा शिर्क माफ़ क्यों नहीं करेगा। जब तुम देखोगे अपने पसंदीदा शख्स को किसी और के साथ, तब तुम समझोगे कि खुदा शिर्क माफ़ क्यों नहीं करता। क्या बात करेगा, बहुत अच्छी बात। अबू बकर कह रहे हैं कि अंकल अबू बकर मैं लिया से हूँ, ठीक है, और चकवाल लाया अंकल अप्पा चकवाल लिया मेरे पास। जब मैं आऊँगा तो फिर आपके पास भी आऊँगा। अबू बकर नमी भाई व्हाट्सएप नंबर सेंड मी। व्हाट्सएप नंबर आपके पास नहीं है, आप कल परसों तो आपके मैसेज आए हैं मुझे। अब्दुल्ला साथ-साथ हैं, अबू बकर कह रहे हैं कि अब्दुल्ला व्हाट्सएप दो। अच्छा, अब्दुल्ला को कह रहे हैं। अब्दुल्ला साद भाई अगर आप ये अबू बकर को अपना नंबर देना चाहेंगे, आपको मेरे ख़्याल है आपका व्हाट्सएप भी मेरे ख़्याल नहीं है शायद। इनका ना असल में व्हाट्सएप नहीं है, ये ड्यूटी करते हैं, वो पता नहीं क्या इनका कुछ सीन है, मुझे खुद भी अभी इनका पता नहीं है। आप व्हाट्सएप पे इनसे बात करें, व्हाट्सएप पे हाल-वाल करें अब्दुल्ला के साथ। मेरी खुद भी यकीन करें मेरे पास भी इनका नंबर नहीं है, पता नहीं व्हाट्सएप है भी या नहीं, मैंने अभी तक पूछा भी नहीं है इनसे। ठीक है, फ़ौज़िया किचन आई हैं जी। बिस्मिल्लाह, सत बिस्मिल्लाह। कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सत बिस्मिल्लाह जी आया नो। क्या हाल है जी, तबीयत से ठीक है मेरी प्यारी बहन। और अबू बकर कह रहे हैं कि इमदाद हुसैन को अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला साथ-साथ हैं। अबू बकर कह रहे हैं कि गोइंग टू नवाज़। ये ना रहे आप इधर बात लगाएँ, बस आप हाल-वाल करें, गपशप करें। और फ़ौज़िया किचन आप सुनाएँ, आपकी तबीयत से ठीक है? और जी, आज मैं ऐसा करता हूँ कि आज फ़ौज़िया किचन को जो है ना, करवाते हैं सपोर्ट। फ़ौज़िया किचन कह रही हैं कि लाइक डन जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और भाई नो क्या करोगे? हाँ जी, अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भाई नंबर क्या करोगे बताएँ, अगर उनके पास हुआ तो। फ़ौज़िया किचन कह रही हैं कि मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल खैर-ओ-आफ़ियत से हूँ। और किधर गया जी, किधर गया? अब्दुल्ला आपके पास ब्लू है, और राशिद अली वीर भाई आपके पास भी ब्लू है।
आप ज़रा ये फौजिया किचन के चैनल को तो ज़रा विज़िट करें, ठीक है? आज से ये काम थोड़ा स्टार्ट करते हैं यार। ज़फ़र उस्मान कह रहे हैं कि शौक सी यार फ़कीरी दा, कुछ इश्क ने दर दर रोल दिता, कुछ सज्जन कसर ना छोड़ी, छड्डी सिकज ਜ਼ਹਿਰ ਰਕੀਬਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰ ਰਕੀਬਾਂ ਘੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਹਿਜਰ ਫਰਾਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਕੁਝ ਦਰਦ ਮਾਹੀ ਅਨਮੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਸੜ ਗਈ ਕਿਸਮਤ ਬਦ ਕਿਸਮਤ ਦੀ, ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੁਦਾਈ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ इंज भी रावां। जब मेरे ख्याल है शायद अभी और आगे मैसेज आएगा। शौक औखियां संगिंज गल विच गमां दा तौक भी तौक सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। ओए होए 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 क्या बात है जी, आज ते बाबे धूड़ा पुट्टी पे हो। फौजिया किचन साथ साथ हैं। अब्दुल्ला कह रहे हैं कि लाइव में आ जाओ, बातें करनी है। तो हाँ जी अबू बकर शहजाद, आप इधर बैठे आप बात कर लें इनसे, अगर नंबर हुआ तो फिर वो बाद में आपको देंगे, अगर ना हुआ तो फिर माजरत है। और फौजिया साथ साथ है, अब्दुल्ला का साथ साथ है। और मोदी शेर का बच्चा कह रहे हैं कि जी अबू बकर बच्चा आप क्या नंबर लेने पर लगे हुए हो। और अब्दुल्ला साथ साथ हैं, फौजिया किचन साथ साथ हैं। राशिद अली कह रहे हैं कि कितने दूर निकल गए रिश्ते निभाते निभाते, खुद को खो दिया अपनों को पाते पाते, लोग कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं और तुम थक गए दर्द छुपाते छुपाते, और हम अच्छा सॉरी और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। क्या बात है जी, ज़िंदगी की तल्ख हकीकतें आज हमारे साथ। तो राशिद भी कह रहे हैं कि इनके अंदाज के करम, उन पे जो आना दिल का हाय, वो वक़्त वो बातें वो ज़माना दिल का ना सुना, उसने तवज्जो से अफ़साना दिल का उम्र गुज़री, मगर दिल का दर्द न जाना। क्या बात है जी, क्या बात। हाजी थे बाबा अखीर हुई भी। राशिद बीर कह रहे हैं कि उस दर्द का दिल का हमें पता न था, आएंगे आंसू आंखों में ये पता न था, वो तो चले गए भूल गए हमको, हम उसके बिन जी न पाएंगे ये पता न था। क्या बात है जी। और राशिद भी कह रहे हैं कि ज़ख्म खा खा के हवा, ये भी तजर्बा हमको हद से बढ़ जाए तो फिर दर्द सुकून देता है। सदफ के वो लोग करेंगे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सदफ के लोग करेंगे कैसे हैं सब बहन भाई, वेलकम करते हैं जी। और अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वालेकुम अस्सलाम। फौजिया सिस्टर साथ साथ हैं। सदफ के लोग कह रहे हैं कि कैसे हैं साद भाई। अब्दुल्ला साथ साथ सपोर्टिंग मैसेज में। और अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी तबीयत कैसी है। सदर के वो लोग कह रहे हैं कि भाई मेरी तबीयत तो अभी ठीक नहीं हुई, इनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं हुई अभी तक, लेकिन दुआ गो है कि अल्लाह पाक खैर करे जी। और सदर के वो लोग कह रहे हैं कि अभी तक तबीयत ख़राब है, खांसी नहीं हट रही, खांसी बहुत गंदी लगी हुई है इनको। अब्दुल्ला और राशिद अली वीर भाई, आप ऐसा करें ना कि इनमें से एक बंदा पहले जाए ज़रा फौजिया किचन के भाई, आप चले जाएँ ज़रा फौजिया किचन के चैनल पे, इनको ज़रा विज़िट करके आएँ। फौजिया किचन साथ साथ हैं, ठीक है। अब्दुल्ला और सदर मेरे साथ साथ रहें। जब राशिद अली वीर भी वापस आ जाएंगे फिर इन दोनों में से मैं किसी एक को बोलूँगा। राशिद अली वीर भाई अगर आप साथ हैं तो बताइएगा, जाने से पहले आपने बता के जाना है अगर आप जाने लगें तो। अब्दुल्ला भाई साथ साथ है, राशिद अली भी साथ साथ है। राशिद अली वीर भाई तुसी जरा जाओ, हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਫੌजिया किचन ਦਾ ਪਿਨ ਕੀਤਾ है मैं मैसेज, इन्होंने ਦਾ चैनल ज़रा विज़िट करके आओ। गला ख़राब हो गया, वो नहीं ठीक हो रहा, सदफ कह रही हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, बस तुसी दुआ दर ज़रूर रखो, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। और सदफ के लोग साथ साथ हैं, अब्दुल्ला साथ साथ हैं, सपोर्टिंग मैसेज में बहुत मेहरबानी शुक्रिया। सदफ के लोग कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम राशिद अली भाई कैसे हैं। फौजिया सिस्टर साथ साथ हैं। और फौजिया सिस्टर कह रही हैं कि मैं साथ ही हूँ जी, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपके साथ का ताउन का। राशिद अली वीर भाई यकीनन चले गए होंगे सिस्टर के चैनल पे। और अब्दुल्ला साथ साथ हैं और सदर के लोग साथ साथ हैं। सदर के लोग कह रहे हैं कि साथ भाई घर में सब खैरियत है जी, बताइएगा जी आपके घर में सब खैर आफियत है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह से तो बहन मैं ठीक हूँ और घर में भी सब खैरियत है। राशिद अली वीर भी कह रहे हैं कि सब खैरियत है। राशिद अली वीर भाई मेरी आवाज़ ਤੁਹਾਡੇ तक आ रही है, अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो फौजिया किचन के चैनल में विजिट करो।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਰਾਸ਼ਦ ਅਲੀ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਆ ਕੋਈ नहीं करता। तो मेरा बहुत प्यारा फेवरेट कलाम है। ओके जा रहे हैं किचन पे, उसके बाद लाइव ऑन करनी है। ओके हो गया, आपका टाइम भी हो रहा है लाइव का। चलें ठीक हो गया, अल्लाह खैर करे। हाँ ठीक है, चलें आप चले जाएँ राशिद अली वीर भाई, अगर आप नहीं गए तो फिर आप इधर ही साथ ही रहें। और ये अब्दुल्ला जा रहे हैं, ठीक है। और मैं जाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਲਾਮ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੇਰਾ ਲੈਂਦੇ ਪਾ, ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੇਰਾ ਲੈਂਦੇ ਪਾ, ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਘਰ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੇਰਾ ਲੈਂਦੇ ਪਾ, ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਦੁਆ, ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘੇਰਾ ਲੈਂਦੇ ਪਾ, ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। मेरी ज़िंदगी ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਟ ਕਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ मतलब पसंद भी नहीं आता। और फौजिया किचन आप साथ हैं, तो अब्दुल्ला ने आपको ज्वाइन कर दिया है। और अब्दुल्ला आपने कमेंट्स किया है इनके चैनल पे, और अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सदब के लोग साथ साथ हैं। फौजिया किचन सिस्टर अगर आप साथ हैं तो आप बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। हाँ, हाँ, अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भाई मोब चार्जिंग पे लगाना है इसलिए। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, आप परेशान ना हो मेरी वजह से। अल्लाह पाक खैर फरमाए, कोई मसला नहीं। आप आए हैं, जितना टाइम आपके पास मिल गया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपके आने का। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब आपकी भी लाइव का टाइम हो रहा है। तो फौजिया सिस्टर आप साथ-साथ हैं, तो अगर फ्री हैं तो सपोर्टिंग मैसेज करते रहें। मैं इंशाल्लाह किसी और को भी आपके चैनल पे भेजता हूँ, ठीक है? और सुनाएँ चैनल का आपका काम वर्क कैसा जा रहा है? मेरे ख़्याल है आप भी लाइव करती हैं, नोटिफ़िकेशन तो मेरे पास आते हैं, लेकिन मसरूफ़ियत इतनी क्या है कि अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता। अब ये 3-4 दिन हुए हैं मैंने स्टार्ट किया है अपना खुद का ना। मैंने जॉइन कर लिया और लाइक कमेंट भी कर दिया है, 1.39 कर दिया है। 1.39 मेरे ख़्याल है वो कोई आपकी वीडियो होगी, उसके ऊपर कोई इन्होंने कमेंट्स किए हैं ना। 2 जॉइनिंग आपको आ गई है मेरी तरफ से। फौजिया किचन आपको मेरी तरफ से राशिद अली वीर और अब्दुल्ला सिबलिंग एंड फन की तरफ से 2 जॉइनिंग आपको मिली हैं। आपने कल इनको जो है ना 24 घंटे के बाद जॉइन करना है। राशिद अली कह रहे हैं कि जी लाइव भी करती हैं। राशिद अली वीर भी आप पहले तो नहीं है ना इनके चैनल पे? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਵੇਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਹੁਣ। राशिद भी कह रहे हैं कि भाई इंशाल्लाह जब मैं पैकेज लगाऊंगा तो इसके बहन को फुल सपोर्ट करूंगा। जी जी राशिद भी भाई ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਯਕੀਨ ਹੈ।
लेकिन बस ये है कि भी अल्लाह पाक तुहानू पहले सेहत देवे। सदर के लोग कह रहे हैं कि रिटर्न बैक भी कर दिया करें, लोग नहीं करते। फौजी सिस्टर आप साथ-साथ हैं ना, तो आपने इनको जो है ना कल 24 घंटे के बाद आपने इनको रिटर्न करना है। आप सपोर्टिंग मैसेज साथ-साथ करती रहें ताकि मुझे पता हो कि आप साथ हैं, और ताकि मैं फिर किसी और को आपके चैनल की तरफ रवाना करूँ। जब तक आपके सपोर्टिंग मैसेज नहीं आएँगे या आपको मैसेज नहीं करेंगी, तो फिर या रुक-रुक के मैसेज करना, थोड़ी-थोड़ी देर बाद करना, तो फिर वो तो फ़ायदा नहीं है ना। नहीं भई, अभी पहली बार गया हूँ, ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से जाने के लिए। और फ़ौजिया किचन में आपको भी ना ब्लीव देता हूँ, आपके मैसेज जो है ना वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, रिव्यू में चले जाते हैं। आप सपोर्टिंग मैसेज करें, तो अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ज़ैका बशमीना कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत बिस्मिल्लाह जी आनू मेरी बहन, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? वेलकम आपका, मरहबा जी, माशाल्लाह से। इंडिया से हमारी और बहन आई हैं, पहले 1-2 आए हैं इंडिया से, लेकिन वो फिर चले गए हैं। तो अब मेरी बहन आ गई है, माशाल्लाह जी। ज़ैका बशमीना कह रही हैं कि 13 लाइक डन, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया मेरी प्यारी बहन, आपके आने का। सुनाएँ घर में सब खैर वाफ़ियत है, बच्चे ठीक हैं? और राशिद अली वीर भाई कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम शबीना बहन। शबीना बहन आपको राशिद अली वीर भाई सलाम कह रहे हैं, और फ़ौजिया किचन साथ-साथ हैं। और राशिद अली कह रहे हैं कि मेरी प्यारी बहन क्या हाल है, ठीक हो? फ़ौजिया किचन अब आपको मैंने ब्लू दे दिया है, अब आप फुल दबा के ज़रा मैसेज करें, साथ-साथ रहें, और मैं अब किसी और को आपके चैनल पे भेजता हूँ, ताकि आपकी जॉइनिंग भी हो, कोई ना कोई फ़ायदा भी हो। सदर के वो लोग कह रहे हैं कि वालेकुम अस्सलाम राशिद भाई। राशिद वीर भाई ਤੁਹਾਨੂੰ शबीना भैन की तरफों वालेकुम अस्सलाम दा मैसेज कबूल होवे। जाको शबीना कह रही है कि आप कैसे हैं? राशिद वीर भाई अपनी तबीयत दा सुनाओ। राशिद वीर कह रहे हैं कि भाई अभी मेरा पैकेज बिल्कुल नहीं है, थोड़ा-थोड़ा टाइम सबको दे रहा हूँ। ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है। राशिद वीर भाई बेफ़िक्र रहो, तुसीं टेंशन नहीं लैनी इस चीज़ दी। सदफ अगर आप साथ हैं, तो आप जाएँ ज़रा इनको फ़ौजिया किचन को जॉइन करें, इनकी वीडियो पे कमेंट्स करके आएँ। और आपको 3 जवानगी हो जाएँगी। फ़ौजिया सिस्टर कल आपने इनको रिटर्न करना है, कल टाइम ना मिले तो कोई मसला नहीं, परसों कर देना, लेकिन रिटर्न याद से करना है। और रिटर्न ऐसे नहीं है कि बस फिर आप कोशिश करें कि इनको भी सपोर्ट करें, ठीक है? आप हम एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो करेगा। और किसी को सपोर्ट के बहाने किसी के चैनल का बेड़ा गर्क नहीं करना। बेड़ा गर्क करने का मतलब ये होता है कि सबसे आसान बात कि किसी की वीडियो ओपन की, क्लिक किया, जल्दी-जल्दी से लाइक किया, कमेंट्स किया, और अल्लाह अकबर वापस आ गए, या फिर भगा-भगा के देख ली, या फिर स्पीड जो होता है ना, वो मतलब बढ़ा के उसकी फिर देख ली। फ़ौजिया सिस्टर कह रही हैं कि वीडियो फुल वॉच करें। मैं इन तीनों बंदों की गारंटी देता हूँ कि ये आपकी वीडियो फुल वॉच करेंगे। राशिद वीर ने अभी कहा है कि अभी इनका वो नहीं है, पैकेज नहीं है, तो थोड़ी-थोड़ी मतलब दे रहे हैं, और इनकी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं, तो हो सकता है कि शायद इन्होंने आपकी वीडियो पूरी ना देखी हो। अदरवाइज़ सदफ़ जो है वो भी वीडियो फुल वॉच करती हैं, मुझे उनका पता है। और राशिद भी कह रहे हैं कि जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी और मैं काम पर जाऊँ, तो मैं पैकेज लगा लूँगा, इंशाल्लाह फिर सबको सपोर्ट करूँगा। जी, आप बेफ़िक्र रहें राशिद वीर भाई, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। सदफ़ कह रही हैं कि कोई बात नहीं राशिद भाई, ठीक है, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। और राशिद भाई कह रहे हैं कि अभी मैं, जब तक मेरा पैकेज नहीं है, प्लीज़ आप नाराज़ मत होना। नहीं, नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है राशिद वीर भाई। सदफ़ कह रहे हैं कि ठीक है, मैं फ़ौजिया सिस्टर के चैनल को जॉइन कर लेती हूँ, वीडियो फुल वॉच करके फिर मैं जॉइन करती हूँ। जी, ठीक हो गया। सदफ़ के लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा ज़ुल्म ना किया करें। कोई मसला नहीं है राशिद वीर भाई। और फ़ौजिया सिस्टर कह रही हैं कि मैं भी फुल वॉच करती हूँ। जी, बहुत ज़बरदस्त। राशिद भी कह रहे हैं कि फ़ौजिया बहन की मैंने वीडियो फुल वॉच की है। ओके, ज़बरदस्त हो गया। सदफ़ कह रही हैं कि मैं तो पहले फुल वीडियो वॉच करती हूँ, फिर जॉइन करती हूँ, फिर कमेंट करती हूँ। ज़बरदस्त, और तरीका भी यही होना चाहिए। और अब देख रही हैं फ़ौजिया सिस्टर, ये जो 3-4 लोग हैं ना, ये आप ऐसा समझें कि भी मेरे फैमिली मेंबर हैं, और मुझे इनका मुकम्मल भरोसा है, मुझे पता है इनका कि ये किस तरह से वीडियो को वॉच करते हैं, किस तरह किसी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? आपने कल टाइम नहीं मिलता, कोई मसला नहीं, आपने कल छोड़ के उससे अगले दिन इनको रिटर्न कर देना है, लेकिन रिटर्न आपने फुल वीडियो के साथ करना है। अम्मी अमीना का किचन, वेलकम जी, सत बिस्मिल्लाह जी आया नो। अम्मी अमीना का किचन सलाम कह रही हैं जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सत बिस्मिल्लाह जी आया नो जी, वेलकम करते हैं जी, मरहबा। अम्मी अमीना का किचन, क्या हाल चाल है जी, तबीयत से ठीक है आपकी? फ़ौजिया सिस्टर कह रही हैं कि मैं लाइव में आने का तो नहीं कहती,
لیکن جو بھی میری ویڈیو دیکھتا ہے اس کی ویڈیو میں بھی دیکھتی ہوں، بس کمنٹس کر دیا کریں۔ زبردست! یہ ہم بھی نہیں، میں بھی نہیں یہ کہتا کہ بھی اس میں آنا چاہیے، لائیو میں ضروری آئیں آپ۔ اصل جو ہے نا بیس وہ ہے ہماری ویڈیو۔ ویڈیو کے اوپر ہم نے ایک-دوسرے کو فل سپورٹ کرنا ہے اور جو ہے نا کمنٹس کرنے ہیں۔ لائیو تو چلو ایک سمجھیں کہ اپنی سپورٹ کے لیے ہم چلے جائیں یا اپنے چینل کی سپورٹ کے لیے، چلو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا۔ لائیو تو سدا نہیں رہنی نا، چینل مونیٹائز ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ یہ چلے گا، ویڈیو چلے گی، تو ہم جو ہے نا اس کے اوپر ہی بیسٹ رہیں گے۔ آپ کے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ اس کو لائیو کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، آپ ویڈیو دیکھ کے سپورٹ کرتی ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جس کو بھی جوائن کرتے ہیں ویڈیو سے ہی جوائن کرتے ہیں اور ویڈیو فل واچ کرتے ہیں۔ زبردست! ذائقہ بھائی شبینہ ساتھ ساتھ ہیں، سپورٹنگ میں سے بہت مہربانی، شکریہ۔ صدف کے بلاگ تقریباً یقیناً گئی ہوئی ہیں فوزیہ سسٹر کو جوائن کرنے۔ فوزیہ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ لائیو کے لیے ٹائم نہیں ملتا، ایسا ہی ہے، میری خود کی مصروفیات ایسے ہیں۔ آپ میرا چینل اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میری ویڈیو کب کی اپلوڈ ہوئی ہیں۔ تو اب میں نے یہ آج میرا تیسرا یا چوتھا دن ہے میں مسلسل لائیو کر رہا ہوں، وہ بھی کافی سارے لوگوں کو کہنے پہ، فورس کرنے پہ۔ کچھ لوگوں نے تو مجھے واٹس ایپ پہ پرسنل پہ آ کے مجھے کہا ہے کہ آپ اپنا لائیو کیوں نہیں کر رہے، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کم از کم لائیو کے لیے ٹائم نکال لیں۔ تو پھر میں نے کہا چلو یار کچھ نہ کچھ کریں۔ ذائقہ بھائی شبینہ بہن کہہ رہی ہیں کہ میں اس وقت 6 موبائل ہینڈل کر رہی ہوں، اس لیے ایک موبائل پر فوکس نہیں دے پا رہی۔ اوکے، کوئی مسئلہ نہیں شبینہ بہن، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں، بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کا بھی۔ فوزیہ سسٹر کہہ رہی ہیں کہ ویڈیو کو کام کرتے کرتے بھی چلا کر رکھ دیتی ہوں ویڈیو کو۔ اچھا، کام کرتے کرتے، زبردست! اچھا، لیڈیز کا یہ بڑا اچھا سسٹم ہے نا، صدف بھی ایسے ہی کرتی ہیں، صدف کے لوگ، اور شبینہ بہن جو ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتی ہیں، کچن میں ہوں اگر کوئی کام کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی مطلب ویڈیو چلا کے رکھ لیتی ہیں۔ لیکن میرا کام اس طرح کا ہے کہ میں کام کے ساتھ ساتھ ویڈیو نہیں چلا سکتا، میری ڈیوٹی اس قسم کی ہے کہ میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بس مجھے مطلب بالکل موبائل کے اوپر بیٹھ کے پھر ہی کرنا پڑتا ہے، اس کے ادروائز میں مطلب نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ جس کی بھی کرتا ہوں میں مکمل ویڈیو پھر مکمل واچ کرتا ہوں، بھلے میں 10 دن بعد کسی ایک بندے کی ویڈیو دیکھوں لیکن دیکھتا فل ہوں، یہ نہیں کرتا کہ 2 منٹ سب کی دیکھ لی حاضری لگوا دی، کبھی نہیں ایسا کرتا۔ اور راشد بھی کہہ رہے ہیں کہ سسٹر یہ بات نہیں ہوتی کہ میری ویڈیو پر آئیں گے کہ میں آپ کی ویڈیو واچ کروں گا، جب ہم کسی کو بھی جوائن کر لیتے ہیں تو ہم ویڈیو واچ کرتے ہیں۔ زبردست! راشد بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری ویڈیو نہ بھی کوئی واچ کرے، ہم نے تو جوائن کیا ہو تو پھر بھی اس کی ویڈیو واچ کر دیتے ہیں۔ زبردست! راشد بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دیکھنے سے ہی اس کا ویڈیو وائرل ہو جائے۔ بہت اچھی سوچ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اور فوزیہ کچن کہہ رہی ہیں کہ بھلے دیکھتی نہیں لیکن ویڈیو چلا کر رکھ دیتی ہوں کام کرنے کے ٹائم۔ بہت اچھی بات ہے، زبردست! ٹھیک ہو گیا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ راشد بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی مت سوچنا کہ میری ویڈیو پر آئیں گے تو میں ان کی ویڈیو واچ کروں گا، جتنا بھی آپ کو ٹائم ملے سب کو دیا کریں، ہو سکتا ہے اللہ کسی کی دعا کے صدقے ہی آپ کی ویڈیو وائرل کر دے، آمین ثم آمین۔ بہت اچھی بات ہے راشد علی ویر بھائی۔ فوزیہ کچن کہہ رہی ہے کہ جی بھائی، ایک ساتھ 2 کام بھی ہو جاتے ہیں لیکن میرا نہیں ہوتا، میں کوشش بڑی کرتا ہوں۔ راشد علی ویر کہہ رہے ہیں کہ سوری اگر میری بات آپ کو بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔ نہیں راشد علی ویر بھائی، سوری والی بات نہیں ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اور ہونا بھی ایسا چاہیے۔ مجھے بھی جب موقع ملتا ہے تو میں کر لیتا ہوں، لیکن ابھی کیا کریں، میری اپنی کچھ مصروفیات اس قسم کی ہو چکی ہیں کہ اب تھوڑا مشکل ہے مینج کرنا، لیکن میں ایک اور کوشش میں لگا ہوا ہوں۔ اب دعا کریں میرے لیے کہ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے۔ میں کچھ اس طرح کا سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا کام بھی کر لوں اور اوروں کو بھی سپورٹ کروں اور فل سپورٹ کروں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا نا مطلب ایشو چل رہا ہے اور کوشش بھی چل رہی ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ۔ تو ان قریب آپ سب کو میں خوشخبری دوں گا، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے، سب لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا اس میں۔ راشد علی ویر بھائی ساتھ ساتھ ہیں، فوزیہ کچن ساتھ ساتھ ہیں، ذائقہ بھائی شبینہ سسٹر ساتھ ساتھ ہیں، سپورٹنگ ویسے میں بہت مہربانی، شکریہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، بہت مہربانی۔ اور فوزیہ سسٹر آپ کا چینل بھلا مونو ہوا ہے یا نہیں؟ میں نے کافی ٹائم ہو گیا آپ کی ویڈیو نہیں دیکھی نا۔ اور فوزیہ میرے پاس 2 تھیں، ایک تو آؤٹ آف کنٹری تھیں، ایک میرے خیال میں ادھر تھیں۔ آپ ناراض نہ ہونا تو آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کہاں سے ہیں، بتانا ذرا فوزیہ بہن۔ نہیں ہوا، اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کتنا ہو گیا آپ کا وائی ٹی WTO آپ کا کتنا ہو گیا؟
राशिद अली वीर कह रहे हैं कि ओके भाई साहब आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। राशिद अली वीर भाई मैं ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ तबीयत ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ नहीं। फौज़िया किचन कह रही है कि इंडिया से हूँ, ओके हो गया, ओके। इंडिया से एक और भी है ना, वो मेरे ख्याल पता नहीं कनाडा या यूके या पता नहीं कहाँ पे रहती हैं, वो भी एक है ना। तो चलें इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे जी। राशिद अली वीर भाई साथ-साथ हैं और शबीना बहन भी साथ-साथ हैं और राशिद अली वीर कह रहे हैं कि सब बहन-भाइयों को अल्लाह हाफ़िज़ जी, ओके हो गया, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ़्ज़-ए-मान में रखे। फौज़िया किचन कह रही है कि नाराज़ होने वाली क्या बात है। कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं ना कि लो जी वैसे तो सब्सक्राइब भी किया हुआ है और पता भी नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए पूछा है कि जहाँ तक मेरा ज़हन पड़ता है ना कि वो है फौज़िया जो है ना 2 है मेरे पास ना, मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली में। अच्छा जी, WT 200 से पार हुआ है, 2000 से, अच्छा, अच्छा। ठीक हो गया, चलिए इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। ज़रूर आपको कंप्लीट हो ही जाएगा इंशाल्लाह, एक ना एक दिन आप मेहनत करते रहें बस। और आपकी लाइव कैसी जाती है? लाइव अच्छी जाती है? मतलब काफ़ी टाइम मिल जाता है अच्छा खासा या नहीं? अगर तो आपकी लाइव अच्छी जा रही है फिर तो आपका इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। आप कितना टाइम के लिए लाइव करती हैं और आपको तकरीबन कितना मिल जाता है वाइड लाइव से? और वीडियो आपकी डेली आ रही हैं या नहीं, ये भी बताइएगा? वैसे तो देखिए भाईजान, जब काम ज़्यादा कर लेता हूँ ना तो उसकी वजह से फिर तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है ना, उस जगह पे दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਵੀਰ ਭਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਵੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਨਾਂ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ इलाज वास्ते एक चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ठीक है। और अल्लाह पाक खैर करे। चलो वैसे भी कह रहे हैं कि अब दर्द के साथ बुखार बहुत ज़्यादा है, इसलिए भाईजान तबीयत ज़्यादा ख़राब है, अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ सेहत देवे। फौजिया सिस्टर कह रही हैं कि लाइव रोज़ करती हूँ, चलें जी अल्लाह पाक बेहतरी करिए आपके लिए। राशिद भी कह रहे हैं कि सॉरी भाई मुझे इस वक़्त सोना नहीं था, क्योंकि भाई बच्चों के लिए काम नहीं करूँगा तो बच्चों को खिलाऊँगा कैसे? अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक बेहतरी करे। वाईटी ठीक-ठाक ही मिलता है, ज़बरदस्त। मैं कल भी अपनी लाइव में बात कर रहा था कि अगर डेली पे आपको ना डेली बेस पे अगर आपको 12 घंटे मिल रहे हैं ना, तो आपका 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको अच्छा खासा मिल रहा है तो ज़बरदस्त, अगर कम मिल रहा है तो भी कम से कम डेली बेस पे ना आपको टोटली, चाहे आपकी लाइव है, चाहे आपकी वीडियो है, अगर आपको डेली बेस पे 12 घंटे मिल रहा है ना, तो समझें कि आपका 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। तो बाकी आपको पता है कि अब उस हिसाब से आपका कैसा जा रहा है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, इंशाल्लाह अल अज़ीज़। अच्छा जी। देखो फिर भी मैं काम पर चला जाता हूँ। राशिद बीर की कह रहे हैं राशिद बीर कह रहे हैं कि इसलिए कोशिश करता हूँ कि काम पर जाने की, तो तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी डॉक्टर तो काम करने नहीं देते। लेकिन फिर भी काम पे चला जाता हूँ, तो फिर जब वज़नी काम कर लेता हूँ, तो तकलीफ़ शुरू हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है जी, अब आप जानबूझ के तो घर नहीं बैठ सकते, मजबूरी है, डॉक्टरों ने तो कहना है, लेकिन अब आपके लिए भी मसला है घर बैठना। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। फ़ौज़िया सिस्टर कह रही हैं कि 10 घंटे मिल जाते हैं, मुझे नहीं मिलता। अल्लाह खैर करेगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो, मिल जाया करेगा। मेरा भी ऐसे था, अब आप एक तरतीब रखें ना, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं जब करता था जब मतलब सही टाइम दिया करता था ना, तो मुझे डेली बेस पे 18-20 घंटे मिल जाते थे, 2 घंटे के दरमियान-दरमियान। तो अब मैंने काफ़ी अर्सा छोड़ के स्टार्ट किया है, तो अब कई दफ़ा इतनी-इतनी देर बैठा रहता हूँ और टाइम कुछ भी नहीं होता। अब इंशाल्लाह ऐसा-ऐसा रूटीन बढ़ रही है, लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं, टाइम भी बढ़ेगा, तो ऐसे ही होता है फिर। आप परेशान ना हो, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। वो कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और नोमी भाई और राशिद भी साथ-साथ हैं। अच्छा फ़ौज़िया से कह रही हैं कि हाँ, कभी-कभी 12 घंटे भी मिल जाते हैं और कभी कम भी। बस आपने परेशान नहीं होना, ठीक है?
हाफ़िज़ सारिया कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ़ हालुका या हबीबी? वेलकम, मरहबा, सत बिस्मिल्लाह। जी आया नू तुहानू अपनी लाइफ दे अंदर। और सुनाओ जी, तबीयत से ठीक है, मिजाज ठीक ने जी? राशिद भी कह रहे हैं कि इसलिए पैकेज नहीं लगवा रहा हूँ कि काम पर नहीं जा रहा हूँ, अभी तो बस बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक करम फरमाए। राशिद वीर भाई ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਧਰੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ WhatsApp ਤੋਂ, ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੇਨ ਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਭਿਜਵਾਵਾਂਗਾ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा उम्मीद है कि तकलीफ़ नहीं होएगी इंशाअल्लाह। फजल सिस्टर साथ साथ हैं सपोर्टिंग मैसेज में, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा जी, बड़ी बात है जी। सदफ़ के व्लॉग आ गए हैं, कहते हैं कि जी मैंने फ़ौजिया को जॉइन कर लिया है। अभी मैं ज़िक्र करने ही लगा था सदफ़ का और सदफ़ आ गई। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया सदफ़ नहीं आई। और फ़ौजिया कह रही हैं कि ओके भाई अब मैं चलती हूँ। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आपको 3 जॉइनिंगें मिल गई हैं, ठीक है फ़ौजिया सिस्टर। और सदफ़ कह रही हैं कि वीडियो में फुल वॉच की और 3 कमेंट्स भी कर दिए। ओके हो गया, गुड हो गया जी। और सारिया आए थे, सारिया किधर चले गए हैं अभी? किधर गए हो जनाब? आई गए तो नसी गए हो। और फ़ौजिया किचन कह रही है कि अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको अपनी ज़बान में रखे। बहुत शुक्रिया आपके आमद का, आने का। आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इसी तरह साथ-साथ रहेंगे। बस आप इसी तरह कोशिश करती रहें कि कुछ कुछ ना कुछ लोगों की लाइव जॉइन करें और कुछ ना कुछ अपने काम के ऊपर भी सही जमा के फ़ोकस करें, टाइम दें। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। और सारिया कह रहे हैं कि जी, जी, की गल है जी, अज ते तुसीं बिल्कुल चुप-चाप ही हो, ना कोई हाल-हवाल कर रहे हो, ना कोई गल-बात कर रहे हो। की गल अज रोटी नहीं खाधी, भुख ते नहीं किते बहुती लगी? राशिद भी कह रहे हैं कि नहीं भाई मैं अभी दवाई खा नहीं सकता कोई भी, और दवाई खाता हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। राशिद अली वीर भाई मैं जिहड़ी चीज़ भेजनी है ना, वो दवाई नहीं है। बस इवें समझो कि तुसीं कोई चीज़ खाधी कोई नहीं, ठीक हो गया? अल्लाह पाक बेहतरी करेगा, तुसीं टेंशन नहीं लैनी। और सदर के लोग कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी हाफ़िज़ सारिया। और ज़ाकिर मशबीना कह रही हैं कि अच्छा भाई अब मैं भी कुछ व्हाट्सअप करने जा रही हूँ। ठीक हो गया जी। अल्लाह पाक खैर करे, आप काम करें। आपके अमल का बहुत शुक्रिया जो आए हैं, जिन लोगों ने अपना कीमती वक़्त दिया है। सदर के लोग कह रहे हैं कि नहीं राशिद भाई वो इतनी मुश्किल नहीं है, दवाई वो एक ही दफ़ा खानी है। बस वो समझें कि इतनी सी दवाई है राशिद अली वीर भाई, बस इन्नी की दवाई जिहड़ी तुसीं खानी है। तो देख सकते क्या है कि तुम व्हाट्सएप पे आओ ना, फिर इंशाल्लाह तुहाडे नाल गलबात होएगी। कदर के लोग कह रहे हैं कि उसके खाने से दूसरी दवाइयों से कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होता। जी, जी, बिल्कुल। सारिया कह रहा है कि नहीं, नहीं, की मतलब भी रोटी नहीं लब्भी? नहीं, 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 नहीं। सदर के लोग साथ-साथ हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। सारिया कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अच्छा, ओ सदर ते मैसेज का जवाब दे रहे होने कि अल्हम्दुलिल्लाह। चलो जी, मेहरबानी, शुक्रिया जी। और इन्होंने क्या सी फौजी सिस्टर ने कि जी, जी, मैं रिटर्न कर दूँगी। चलें बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप रिटर्न कर देना। सदब के ब्लॉग साथ-साथ हैं, सपोर्टिंग मैसेज साथ-साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी तुहाडी आमद दा। राशिद भी कह रहे हैं कि सदब बहन ने मैंने बहुत बार दवाई ली है और बहुत दूर तक दवाई ले चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है, इसलिए अब मैं नहीं खाता। राशिद ਵੀਰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਬੇਗਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं ਲੈਣੀ, बस। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। सदर के लोग कह रहे हैं कि जी, जी, राशिद भाई मैं समझ सकती हूँ आपकी कैफ़ियत को। शबीना बहन कह रही हैं कि अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मेहरबानी शबीना बहन, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको ज़मान में रखे, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। आप आए और फ़ौज़िया किचन भी आई इंडिया से, 2 बहनें हमें मिली हैं इंडिया से, और आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और सदर कह रही हैं कि क्योंकि जब इंसान थक जाता है ना, तो फिर उसे ऐसे ही लगता है कि हर दवाई, जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, हम खुद इस चीज़ को समझते हैं। अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ज़रूर शिफ़ा देगा हमारे भाई को। सदब कह रहे हैं कि अल्लाह हाफ़िज़ शबीना सिस्टर।
عبد الاحد آئے ہیں، کہتے ہیں کہ جی السلام علیکم اشحال فوڈیز، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشحال فوڈیز سے ویلکم ویلکم جی، کیا حال چال ہے جی؟ طبیعت سے ٹھیک ہے جی بہنا؟ اور سنیں سب خیر و عافیت ہے جی؟ بہت مہربانی، شکریہ، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ ست بسم اللہ جی آیا نو آپ کو اپنی لائیو میں۔ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ لائک ڈن جی، بہت مہربانی، شکریہ۔ اور صدر کے لوگ ساتھ ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ صدر کے لوگ ساتھ ساتھ سپورٹنگ میسج، بہت شکریہ۔ اور ساریہ آپ کا کھانا ہو گیا؟ ساریہ ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ راشد بھی کہہ رہے ہیں کہ اوکے صدر ہیں، اور میرے پیارے سے بھائی سب کو اللہ حافظ جی، بہت مہربانی، اللہ حافظ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ اور عبدالاحد کہہ رہے ہیں کہ لائک ڈن جی، بہت مہربانی، شکریہ سپورٹنگ میسج کے لیے، جو سپورٹنگ میسج کر رہے ہیں ان کا بھی شکریہ۔ صدر کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ حافظ راشد بھائی، اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ عبدالاحد کہہ رہے ہیں کہ میں اشحال فوڈیز ہوں۔ جی جی میں سمجھ گیا ہوں، آپ نے جب پہلا میسج کیا میں اسی وقت سمجھ گیا تھا۔ اور ساریہ کہہ رہے ہیں کہ صدر بلاؤز کیا حال ہے؟ عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت، شکر الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں، آپ کی دعائیں، آپ سنائیں آپ کی طبیعت صحت اور گھر میں سب خیر و عافیت ہے؟ ساریہ سپورٹنگ میسج ساتھ ساتھ، بہت مہربانی، شکریہ۔ اور صدر کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ساریہ اور سناؤ طبیعت صحت کیسی ہے، مزاج کیسے ہے؟ عبدالاحد کو لگتا ہے دینا پڑے گا بلیو، ان کے میسج جو ہیں وہ جا رہے ہیں ریویو میں، اب لگتا نہیں جائیں گے، اب آپ میسج کریں۔ ہاں دیکھا نا، بلیو دینے کا ایک فائدہ ہے، یہ کس کے میسج ریویو میں جا رہے ہیں؟ یہ نیو آئے ہیں عبدالاحد، ان کے جا رہے تھے ریویو میں نے ان کو بلیو دے دیا۔ اچھا بلیو دینے کا یہ بڑا فائدہ ہے یار، بلیو دینے سے کسی کے میسج ریویو میں نہیں جاتے، زبردست ہو گیا جی۔ چلیں جی چیک کر رکھو کام نو۔ اور سنائیں عبدالاحد اشحال فوڈیز، آپ کے گھر میں سب خیر و عافیت ہے؟ اچھا صدر کے لوگ ساتھ ساتھ ہیں، بہت مہربانی، شکریہ جی۔ اور آج ساریہ اسی یار کوئی گل بات نہیں کر رہے، کوئی حال وال نہیں کر رہے، کی گل خیر ہے آج؟ بہت مہربانی، شکریہ عبدالاحد، آپ کی سپورٹنگ میسج کا بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت اچھے سے آپ سپورٹ میسج کر رہے ہیں، اور اسی لیے میں نے آپ کو بلیو بھی دے دیا ساتھ، بہت شکریہ آپ کا۔ عبدالاحد ساتھ ساتھ ہیں، صدر کے لوگ ساتھ ساتھ ہیں، اور ساریہ بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ ساریہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہوں، آج سے چھٹی تھی تو سوچا گپ شپ کر لوں۔ اوکے اوکے، مہربانی، شکریہ جی۔ گپ شپ گھر کرنے تو دل کر رہا ہے، یا ساڈے نال کرنے دل کر رہا ہے جناب؟ ویلکم کرنے، اگر ساڈے نال کرنے دل کر رہا ہے تو ست بسم اللہ جی آیا نو پھر تو کہنے ہیں جی تانوں۔ آج ٹی پروگرام کر لیا آپ نے؟ آج تسی بہت لیٹ آئے ہو، آج تو ماشاءاللہ لائیو دے وچ اتنی زبردست شعر و شاعری چل رہی سی نا کہ کیا بات ہے، تے مزے ہی آ گئے شعر و شاعری دے۔ تسی تو آج لیٹ آئے ہو، آج تو تسی تقریباً گھنٹہ لیٹ آئے ہو۔ صدر کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ، اور نومی بھائی اور ساریہ اور عبداللہ احد سپورٹنگ میسج ساتھ ساتھ۔ عبداللہ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت زبردست آپ کی سپورٹ جا رہی ہے۔ آپ ساری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو آج بھی ٹی پروگرام نہیں کیا، تو اسی ہمیں لگتا زیادہ ہی سرفے والے ہو گئے۔ ایزل ورڈز یو کے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ست بسم اللہ جی آیا نو، کیا حال ہے میری پیاری بہن؟ ایزل بہن آئی ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی۔ اور سنائیں سسٹر، طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی ماشاءاللہ سے؟ میں نماز ادا کر کے بات کرتی ہوں، ٹھیک ہو گیا جی، آپ نماز پڑھیں اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا نماز کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور آپ آ جائیں، پھر واپسی گپ شپ ہوتی ہے۔ اور صدر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وعلیکم السلام، سسٹر عبداللہ کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام، بہت مہربانی، شکریہ۔ میں ذرا نا تھوڑا تھک گیا تھا، تو اس لیے نا میں نے کہا چلو دوسرے موبائل سے میسج پڑھتا ہوں، تھوڑا اس سے تھوڑا دور پڑ جاتا ہے، تو چلو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر میسج پڑھتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ۔ عبداللہ ساتھ ساتھ ہیں، بہت مہربانی، شکریہ۔ صدر کے لوگ ساتھ ساتھ ہیں، ساریہ ساتھ ساتھ ہے، ساریہ حاصر ہے۔ اور ساریہ کدی کدی چاہ پی لیا کرو، آج کل تو ویسے ٹھنڈ ہے، چاہ پی لو تو رضائی بھی کہندی ہے کہ آ جاؤ ویلکم، تے جے چاہ نہ پیتی ہوئے نا تو رضائی بھی کہندی ہے کہ پراں پراں، مطلب ٹھنڈ اینی ہے کہ چلو چاہ پینا تھوڑا جا سردی جڑی ہے گھٹ جاندی ہے۔ میں تے خود مطلب پہلے انی چاہ نہیں سا پیندا ہوندا، لیکن ہن جڑا ہے نا رات نوں اسپیشل چاہ بنوانی ہوندی ہے،
कल स्पेशल बनवाई सी ते अज फिर आपे ही बन गई। अज मूड नहीं सी है लेकिन बन गई ते पी ली ते मज़ा आ गया, शुक्र अलहमदुलिल्लाह। चाह पी लिया करो, कदी-कदी चंगी हुंदी। मैनू लोग कहंदे हुंदे सी कदी-कदी पी लिया करो चंगी हुंदी, लेकिन मैं पहले मनदा नहीं सी हुंदा, लेकिन हुण मैं भी कहना कि कदी-कदी चंगी हुंदी है। सदव कह रहे कि चाय पी लिया करो अल्लाह के बंदे। हाँ जी, पी लिया करो। नहीं तो सानू दस दो, फिर असीं भेज दिया करांगे, ज़्यादा इशू है ते। सदर के लोग साथ-साथ सपोर्टिंग मैसेज, नोमी भाई भी साथ-साथ सपोर्टिंग मैसेज, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अब्दुल अहद आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी सपोर्ट का। अब आप सपोर्टिंग मैसेज कर रहे हैं तो आपकी आईडी भी दूसरी है, और नहीं तो चलो आप कुछ बैनर वगैरह भी करते हैं। सारिया साथ-साथ है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सारिया। और सुनाओ फिर मौसम दा कैसा? अब्दुल अहद सपोर्टिंग के लिए थैंक्स। अब्दुल अहद सपोर्टिंग मैसेज, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपकी सपोर्ट का, शुक्रिया जी, शुक्रिया सबका। जो सपोर्टिंग मैसेज कर रहे हैं सबका बहुत शुक्रिया जी, ज़बरदस्त हो गया जी। और जिवें कहंदे हुंदे ने इंडिया वाले, धन्यवाद हो गया। लेकिन मैं वैसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई गल नहीं है। सदर कह रहे हैं कि सारिया क्या हुआ इतना गुस्सा, पता नहीं की गल है अज ते सारिया दा ना कोई एडा मूड नहीं है गपशप वाला, जिवें कल गपशप लाई सी ना, अज लगदा ठंड बहुती लगी है खरे। अच्छा जी, सारिया कहंदा जी मौसम अच्छा है। चलो जी, ज़बरदस्त, मौसम एन्जॉय करो। मौसम अच्छा है तो फिर गपशप करो, कोई हाल-वाल करो ज़रा। और फिर ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ? ਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। अरे कह रहे दिन को धूप निकलती है, दिन को धूप निकलती है, रात को सर्दी आती है। रज़ाई भी हमको भाती नहीं है, दिन को सर्दी आती नहीं है। अब्दुल्ला सपोर्टिंग मैसेज, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सपोर्टिंग मैसेज के लिए। मेरा दिल कर रहा है कि फिल्मों के सपोर्टिंग मैसेज आ रहे हैं तो मैं ना ज़रा फिर एक बारी वही कलाम पढ़ा जिन्ना पहले पढ़िया। दुख दुनिया दे घेरा लेंदे पा, मावां जदों मर जांदियां, दुख दुनिया दे घेरा लेंदे पा, मावां जदों मर जांदियां, कोई कहंदा ने पुत घर आ, मावां जदों मर जांदियां, अपणियां मावां वाली ठंड कौन पाउंदा ਏ, मूंह मत्था चुम के ते सीने कौन लांदा ਏ, कोई करदा नी मगरू दुआ, मावां जदों मर जांदियां। सारियाँ कह रहे हैं कि खाना खा के आधा घंटा वाक भी कर ली। ज़बरदस्त हो गया जी, ज़बरदस्त। फिर तो तुसीं चंगे हो। बस असीं खाना खाधा ते बेड ते बैठे हैं ते चाह पीती ते लाइव नाल शुरू कर ली। और सारियाँ कह रहे हैं कि पोल्ट्री भी होगी, आज मैं लेट हो गया। हाँ जी, आज तुसीं लेट हो गए, चलो कोई नहीं गल। फिर इवें ही हुंदा जी, कदी लेट ते कदी अप ते कदी डाउन, कदी ठंड ते कदी गर्मी।
ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। لا لا چکلو عبد الاحد سپورٹنگ میسج بہت مہربانی شکریہ، اور ساریہ سپورٹنگ میسج شکریہ۔ چلو جی گپ شپ کرو، نیو آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں جی، جو نیو آئے ہیں ہماری لائیو میں، اور آ کے سپورٹنگ میسج کریں، کوئی گپ شپ کریں، کوئی حال حوال کریں، اور لائیو کو لائک کریں، موبائل کی اسکرین کو ڈبل ٹائپ کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون ہمارے ساتھ ہے۔ اس ٹائم 4 بندوں کی واچنگ جاری ہے، اور تقریباً 3 بندوں کی جو ہے نا وہ ہے سپورٹ جاری ہے۔ چار بندوں کی واچنگ ہے جی، اور کمنٹس میرے خیال اس حساب سے نہیں آ رہے۔ ساریہ ہے، صدف ہے، عبد الاحد ہے، تقریباً بس 4 ہی ہیں۔ ہسو جی ہسو، جنہ جنہ ہسنا کھول کے ہسو تاکہ تہاڈی طبیعت سیٹ رہے۔ کھول کے ہسنا طبیعت سیٹ ہو جاندی ہے، میرا جس تک خیال ہے۔ اچھا جی، ہور سناؤ جی پھر ساریہ چائے شائے ویسے پیندے ہوندے ہو کہ نہیں؟ اچھا جی، نومی بھائی واز ٹائمڈ آؤٹ بائی عبد الاحد فار 10 سیکنڈ۔ اچھا جی، یہ کی ہے جی، وہی ڈیلیٹڈ میسج ہے عبد الاحد آپ نے میسج ڈیلیٹ کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ اچھا جی، سارے کہہ رہے ہیں بھائی وہ کلام پڑھو، میری چڑھ گئی پینگ ہلارے نظارے اے پیر دیاں۔ یہ تے بچپن دے وچ کدی پڑھدے ہوندے ساں، ہن تے یاد ہی نہیں ہے کلام۔ ہے میں تھوڑا جا کو گھما لیں تو ذہن جے اگر گھوم گیا تو عبد الاحد کہہ رہے ہیں کہ اللہ حافظ جی، بہت مہربانی شکریہ، اللہ حافظ آپ کے آنے کا۔ یاد کرنا پینا تھوڑا بتا، ہن تے ذہن وچ نہیں ہے، تو تسی تے میرے بچپن دی گل یاد کراتی یار۔ میں مطلب ایڈا بڑا کوئی نعت خان نہیں ہے، میں نعت بچپن پڑھدا ہوندا سا تھوڑے بہت، بلکہ ساڈی میری دادی ہوندی سی، اللہ جنت نصیب کرے، او پڑھدی ہوندی سی، او سانوں سناندی ہوندی سی تے جڑا نا، لیکن میں تو بس ویلا بیٹھا جدوں کوئی نہ کوئی گل بات نہ ہوئے تو پھر میں ایویں کر دینا ہونا کوئی نہ کوئی، چلو گل کوئی نہ کوئی کلام پڑھنا شروع کر دینا ہونا۔ تے اے تسی شعر لکھیا تے مینوں تھوڑا جہا یاد آیا کہ بچپن دے وچ پڑھی دا ہوندا سی، لیکن ہن اینوں یاد کرنا پئے گا تو پھر ہی ہے، فی الوقت تے نہیں۔ سارے کہہ رہے ہیں جی بچپن، جی بالکل جی، بچپن کی باتیں پھر جو ہے نا، بچپن کی یادیں اور بچپن کی باتیں، کیا بات ہے، گزریا وقت پھر نہیں آندا۔ اللہ ساڈی چڑھ گئی پینگ ہلارے تے لیکن نہیں ہے تک نا، مینوں مطلب صحیح یاد نہیں آ رہا۔ میں ہن اینوں نیٹ تو سرچ کراں گا، اگر مینوں مل گئی تے پھر مینوں پہلے یاد کراں گا تھوڑا بہت، پھر تانوں اپنی آواز دے وچ سناواں گا۔ پتہ نہیں پھر وہ بھی پتہ نہیں واللہ عالم صحیح بھی لگدی کہ نہیں، کیویں دی لگدی اللہ بہتر جاندا، لیکن چلو خیر کوئی نہیں، جویں دا بھی ہویا پھر کدی ویکھاں گے۔ ساریہ صدف اور نویں بھائی سپورٹنگ میسج بہت مہربانی شکریہ، ساتھ ساتھ سپورٹنگ میسج کے لیے شکریہ ہے جی آپ کا۔ اور ساریہ پھر سناؤ کوئی نوی تازی، کوئی حال احوال، کو گپ شپ سناؤ کو آج تک۔ آج پرانے لوگ آئے ہیں کچھ، اور پھر بہت جلدی واپس چلے گئے۔ ارباد خان آیا، وہ بھی چلا گیا، بس کچھ لوگ آئے اور وہ بھی چلے گئے، چلو خیر، لیکن ایک ٹائم چلو کچھ اچھا گزر گیا، اللہ کرے اگے بھی اچھا گزر جائے گا، خیر نو ٹینشن۔ سارے کہہ رہے ہیں کہ چلیں جی کوئی بات نہیں، ہاں جی کوئی بات نہیں۔ آج ویسے نا شعر و شاعری بہت مزیدار ہوئی، بہت مزے دی شعر و شاعری ہوئی، لیکن تسی ہے نہیں سو، میں نا مس بڑا کردا نے، میں کہ کل جڑا نا ساریاں نے وچ تھوڑا تھوڑا حصہ لیا سی شعر و شاعری دے، تے اج میں کہ وہ ہے ہی نہیں کہ، تے اج مزہ بڑا آ رہا سی شعر و شاعری دا نا، دو تین بندے نے مطلب شعر و شاعری سینڈ کیتی ہے نا، تے بہت مزہ آیا۔
ਸਾਰੇ ਕਹ ਰਹੇ ਜੀ बस जी शुक्र है, चलो जी माशाअल्लाह जी शुक्र होना चाहिए, बहुत अच्छी गल है। और ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖੈਰ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੌਜੂ ਛਿੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 8:15 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ खैर करे जी। मोहसिन अली कह रहे हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सत बिस्मिल्लाह जी, आयानू वेलकम वेलकम जी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है जी? सारिया सपोर्टिंग मैसेज नाल नाल बहुत बहुत शुक्रिया। सर्दी अज ज़्यादा सी या कल ज़्यादा? ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਡਿਊਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਭੱਜ ਨੱਠ ਚ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਡਨ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਾਈਕ ਡਨ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆ ਸਕੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਆ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। मेरा तो तकरीबन इरादा यही है कि रोज़ आने का ना, लाइव बैठ के थक जाते होंगे। हाँ, थक तो जाइदा कई दफ़ा, लेकिन ये है कि भी अगर कोई मौजू चलता रहे ना गपशप का, फिर नहीं थकावट नहीं होंदी। कल जिवें मैं मतलब पहला मेरा टाइम थोड़ा जिहा होया सी, फिर मैनूं तकरीबन जो है ना थोड़ी देर बाद नींद भी आन लग पई। लेकिन फिर जदों काफ़ी सारे लोग आए, गपशप दा मौजू छिड़िया, फिर पता ही नहीं चलिया, मैनूं तो टाइम का भी नहीं पता चलिया मुड़ के। और थकावट भी मतलब महसूस नहीं हुई, नींद भी उड़ गई, हर चीज़। ਜਦੋਂ मैसेज आ रहे होण ना काफ़ी सारे, फिर पता नहीं चलता थकावट का ना टाइम का। और वापस आ रहे कह रहे कि हाँ जी, कल ज़्यादा थी। हाँ, मैनूं कल ज़्यादा लग रही सी, मैं भी क्या पता नहीं, शायद मैनूं ज़्यादा लग रही सी, लेकिन ਇਹਦਾ मतलब फिर कल वाकई है सी। ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਐਤਕਾਂ। ਕੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸੁਣ ਲਾ ਖਾਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੇ ਸਦਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਥ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਾफ़ੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਆ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਔਰ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ गपशप ਕੀਤੀ, और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ गए। सारिया कह रहे कि खांसी का बहुत मसला है सबको। हाँ जी, मौसम की वजह तो ना थोड़ी जी प्रॉब्लम बनी हुई है सब वास्ते, लेकिन चलो अल्लाह पाक बेहतरी करे। वैसे भी ना हुण मैं जो लाइव स्टार्ट करना, तो मेरा वैसे बहन दिल ही नहीं करता। मैं ना पिछे कमर दे मतलब कोई ना कोई तकिया या कोई ना कोई चीज़ रख लेना, फिर थोड़ा जिहा अपने आप नूं ईज़ी समझना, फिर बह के लाइव स्टार्ट कर लईदी। फिर एक बड़क बाद च गपशप दा मौजू चल जांदा, फिर थोड़ा जिहा माहौल सही रहिंदा, फिर इतनी टेंशन नहीं हुंदी। अल्लाहु अल्लाहु अल ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਵ ਕਰੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਗਪਸ਼ਪ ਚੱਲਣੀ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ
ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਆਹਿਸਤਾ-ਆਹਿਸਤਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਘਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਝੱਟ ਗੱਪ-ਸ਼ੱਪ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। और टाइम हुआ चाहता है जी 9:30 बल्कि 9:23 हो गए। न्यू आने वाले वेलकम है जी। अगर कोई न्यू आ रहा है साडी लाइव के अंदर तो आके कमेंट्स करे और मोबाइल स्क्रीन ते डबल टाइप करे ताकि लाइव जी लाइक हो जाए और कमेंट्स करो ताकि असीं तुहाडा वेलकम कर सकीए। हाँ, सारिया कह रहे हैं कि सदफ के व्लॉग सुनाए कोई बात आप भी। सुनाओ जी सुनाओ, अज तो मैनू भी कोई समझ नहीं आ रही भी किहड़े मौजू ते गल करनी चाहिए। अल्लाह अल्लाह तकरीबन 8 बजे फ्री होते हैं, ठीक हो गया। और फिर की मतलब 8 बजे बाद फिर अपना की कुछ शुगर मेला होंदा है। सदफ कह रहे कि मैं क्या सुनाऊँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अल्लाह पाक करम करे जी, अल्लाह सेहत देवे जी। बस दुआ गो ते हैं लेकिन हुण जो अल्लाह नूं मंजूर है। कुछ मौसम की वजह भी है, उंज भी पता नहीं हुण की कुछ सिलसिला बनया पिया, हर बंदा ही बीमार है। मेरी खुद दी मतलब पहले इन्नी तबीयत कदी लंबी ज़्यादा पीरियड नहीं चली, लेकिन इस दफ़ा तो तकरीबन 2 हफ्ते तो क्रॉस हो चुका है। मेरी तबीयत मतलब ठीक नहीं होंदी, ठीक होएगी दिहाड़ी तो ठीक होंदी है, फिर दोबारा ज़ोर कर जांदी है। नहीं तो पहले 2-3 दिन तो ज़्यादा मेरी तबीयत कदी ख़राब नहीं सी रही। 102 ते 3 तक भी टैंपरेचर जांदा रहा, लेकिन 2-3 दिन तबीयत ख़राब रहनी, उस तो बाद ठीक हो जानी। हुण ते टैंपरेचर भी ते नज़ला खांसी भी हर चीज़ बस 2-2 हफ्ते मतलब चलदी पई है नाल-नाल। कुर्बान अली सुल्तानी कह रहे कि जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सत बिस्मिल्लाह आया नू जनाब जी, आया नू की हाल चाल है जी? मरहबा मरहबा। सारिया कह रहे कि आज तो हमें भी समझ नहीं आ रही क्या बात करें। चलो फिर कोई ना कोई गल छेड़ लवो, कोई याद कर लो, कोई गल को अपना कोई जिवें कहंदे हुंदे हड्ड बीती ते जग बीती। और सुनाओ कुर्बान अली सुल्तानी साहब, तुहाडी तबीयत सेहत कैसी है जनाब? और सुल्तानी साहब मैं तुहानू कहा सी कि 1-2 दिनों तक चक्कर लगावांगा, लेकिन वो 1-2 दिन मज़ीद अगे हो गए क्योंकि मैं अज है सोमवार और कल सी मंगल। मंगल नूं करनी सी मैं छुट्टी, पहले सोमवार नूं करनी सी, फिर एक बंदा विच पै गया, उहने कहा जी मेरा काम है ते मैं छुट्टी करनी। मैं कहा चलो तुसीं कर लो जी। फिर मंगल दा प्रोग्राम बनाया, हुण ओही बंदा जिहने सोमवार छुट्टी कीती अज ओहदी फिर शाम नूं कॉल आ गई कि मैं 2 दिन मज़ीद होर छुट्टी करनी। मतलब हुण मेरी छुट्टी जिहड़ी जाके बन रही है जमेरात दी। हुण इह दुआ करो कि जमेरात नूं फिर कोई किसे दा कोई मसला ना बन जावे, नहीं ते फिर हो सकदा मेरी छुट्टी होवे जुमे नूं। जे मेरी जुमे नूं छुट्टी होई ते जुमे नूं तुहाडी भी छुट्टी होनी, फिर अपनी मुलाकात कैंसल। या फिर हो सकदा कि देखो शायद कोई दिन अगे चली जावे, या फिर हो सकदा कि जमेरात नूं हो जावे अपनी मुलाकात। मैं कहा चलो मैं तुहानू एडवांस दस देवां, फिर इह ना कहो कि भी कह के बंदा ते आया ही नहीं, लारा लप्पा लाता कॉलेज च आया ही नहीं गा। क्योंकि अपनी मुलाकात कॉलेज च ही ज़्यादा आसान हो सकदी है। चलो अगर तक थोड़ा जिहा टाइम इस तरह दा चल रहा, बाकी अगे पिछे निकलना मुश्किल है। सारिया और सदफ साथ-साथ बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सपोर्टिंग मैसेज। और सुनाओ कुर्बान अली सुल्तानी साहब? 5 बंदे दी वाचिंग है जी और शुक्रिया। फैज़ी दी गेमर कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। फैज़ी गेमर वेलकम जी, सत बिस्मिल्लाह जी एन मरहबा। फैज़ी गेमर आपने हमें कहाँ से जॉइन किया है बताइएगा। कुर्बान अली सुल्तानी साहब कह रहे हैं कि घर में भी तो आ सकते हैं। मैं वही तो गल कर रहा जनाब कि फिल वक्त जिहड़ा है वो कॉलेज दे विच मुलाकात कुछ सौखी रहनी, घर दे विच चक्कर लगाना हजे थोड़ा जिहा मुश्किल लग रहा है। ठंड हैगी, छोटे-छोटे दिन हुंदे है और फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। फैज़ी गिमर कह रहे कि की हाल है जी? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा करम जनाब। तुसीं सुणाओ तुहाडी तबीयत सेहत मिजाज कैसे और किस जगह तो किस सिटी तो तुसीं सानू जॉइन कीता, दसना पसंद फरमाओगे? सानू रेसिपी कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। एवरीवन कैसे हो पंजाबी भाई एंड सदफ? मिस्टर जी खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। आप सुनाएँ, आपकी तबीयत सेहत मिजाज और घर बार में सब खैर आफियत है?
सारिया सासा सदगुल सासा और सानू रेसिपी कह रही है कि 18 लाइक डन, लाइक डन, लाइक डन, लाइक डन। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी आपके लाइक डन का। और सुनाएँ सिस्टर आपकी तबीयत कैसी है? सदब कह रहे हैं कि वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। जी, प्यारी सिस्टर क्या हाल-चाल है आपके? आप अपना हाल-अहवाल दीजिएगा। और सदब कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर आप सुनाएँ आप कैसी हैं? जी, बिल्कुल। सानू रेसिपी सिस्टर कह रही हैं कि मैं अच्छी हूँ माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। जी भाई, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह का करम ही रहना चाहिए और आप सदा सलामत रहें, हमारी ये दुआ है दिल से। अल्लाह पाक आपको अपने घर में, अपनी फैमिली में खुशो-आबाद, खुशो-खुर्म रखे। और सदर के लोग कह रहे हैं कि माशाल्लाह मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं कि मज़ा की आना भाजी सिग्नली अगले नहीं रहे। जी, वेलकम हो गया उस्मान भाजी, वेलकम सत बिस्मिल्लाह जी आया ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ, ਸਿਗਨਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਉਸਮਾਨ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ, ਸਿਹਤ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੈਸੇ ਹੈ? ਔਰ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਹਾਸਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਟਿੱਬੇ ਦੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡਾਂ ਤੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ मैसेज नाल-नाल बहुत मेहरबानी शुक्रिया। एज़ल वर्ल्ड यूके तो कह रहे हैं कि जी भाई और सुनाएँ सदब सिस्टर आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आप सुनाएँ, आपने नमाज़ पढ़ ली माशाल्लाह से और हमारे हक़ में भी दुआ की है। और सुनाएँ घर में बच्चे सब ठीक हैं? आपने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, लेकिन वो फिर वीडियो के अंदर ना मतलब इतने कमेंट्स करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो अच्छा जी, एज़र वर्ल्ड कह रहे हैं कि भाई जी आप कौन-सी बात पर एग्री नहीं थे? हाँ, व्लॉग। मैं भी इसी तरफ ही आ रहा था, आपने भी यही बात कर दी है। सभी मतलब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सारिया साथ-साथ हैं, सारिया साथ-साथ, सभी मतलब साथ-साथ। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सभी मतलब वेलकम सब बिस्मिल्लाह जी आया नू। वो मैं इस बात से एग्री नहीं था, मतलब आप कह रही थी ना कि मतलब बुराई की जड़ जो है वो मर्द हज़रात हैं। तो ब्लैक माफिया आर्मी कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सत बिस्मिल्लाह जी आयानो, वेलकम करते हैं जी आपका, आपने हमें कहाँ से ज्वाइन किया है? और सभी मतलब कह रहे हैं कैसे हैं सब? जी बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं आपकी तबीयत सेहत कैसी है? और ब्लैक आर्मी, आप मेरी लाइव में न्यू आए हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पर डबल टैप कीजिएगा तो लाइव जो है लाइक हो जाएगी। और एज़ अ सिस्टर पूछ रही थी, अच्छा ब्लैक आर्मी कह रहे हैं कि भाई आपकी एज क्या है? जी मेरी एज 13 है। अभी हुआ नहीं हूँ लेकिन हो जाऊँगा 30 का। तो एज़ अ सिस्टर वो आप कह रही थी ना कि मर्द जो होते हैं वो मतलब बुराई को फैलाते हैं या वो इस तरह का आपने को बात की नहीं ना। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि भी सिर्फ़ मर्द ही नहीं होता, मर्द का काम होता है घर में औरतों को कहना, बात को समझाना या मतलब किसी चीज़ पे। और अगर कोई उस बात पे एग्री ही ना हो तो फिर मैंने बड़े-बड़े ये घर अपनी ज़िंदगी में मैंने अपनी इन आँखों से देखे हैं कि घर के अंदर मर्द हज़रात जो है ना वो घर में बोलते हैं, मिसाल के तौर पे अपनी वाइफ़ को बोलते हैं कि छोटी बच्ची को ना भी इसको पर्दा कराया करो, इसके सर पे कपड़ा दिया करो। और जो है बेगम जो है वो अपने शौहर से लड़ना शुरू कर देती है, लो जी अब आपको अपनी बेटी पे जाके ये चीज़ें याद आ गई हैं, सारी दुनिया ऐसे फिर रही है, सारी दुनिया के बच्चे इस तरह अय्याशियाँ करते हैं, तो क्या मेरी बेटी के लिए इजाज़त नहीं है इस चीज़ की, मैं अपनी बेटी को 4 दिन खुशी की ज़िंदगी ना दूँ? तो इस तरह का ना बड़े मतलब काफ़ी मामलात बहुत लंबे मौज़ू हो जाएँगे, अगर मैं किसी एक का वाक़या शुरू कर लूँ तो वाक़या बड़े हैं मेरे सामने। तो मैं इसलिए कह रहा था कि भी खाली मर्द ही नहीं होता, मर्द तो बेचारा अपनी कोशिश कर सकता है, लेकिन इसमें मतलब बुराई फैलाने में या बुराई कम करने में दोनों को ही किरदार अदा करना पड़ता है। दोनों का ही किरदार देखा जाता है कि बुराई में किसका हाथ मतलब है, एक बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। और उसके अलावा एक पायेदारी की बात करूँ ना, औरत ज़ात मतलब कितनी पायदार और कितनी मज़बूत है, माशरे को किस हद तक बिगाड़ सकती है और किस हद तक दुरुस्त कर सकती है। इसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। एज़ अ वर्ड सिस्टर कह रही हैं कि जी, जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब ठीक है, माशरा इस किस्म का हो चुका है, वक़्त इस किस्म का आ चुका है कि थोड़ा-सा ना हालात वो पहले वाले नहीं रहे।
एज अ सिस्टर कह रही हैं कि बट मोस्टली आजकल मर्द अपनी औरत को शो पीस बना के बाहर लेके जाता है। जी, बिल्कुल ये भी ठीक है, आपकी बात। सारिया कह रहे हैं कि मर्द सिर्फ़ इस्लाह कर सकता है घर में, आगे सबकी मर्ज़ी। जी, बिल्कुल मैंने भी यही बात की थी। सारिया कह रहे हैं कि इस्लाह करना फ़र्ज़ है। जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि औरत ज़ात कितनी मज़बूत है। औरत अगर एक मिसाल है कि बाज़ार में गई है ना, बापर्दा है, तो किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है कि उस औरत की तरफ देखे। देखने से तो दूर से तो कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन करीब आके कोई भी मर्द देखता नहीं है। किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है कि वो औरत को मतलब कोई बात कर ले या उसके साथ कोई हरकत कर ले। जब तक औरत खुद ना चाहे तो कोई मर्द ज़ात कुछ नहीं कर सकती, ठीक है? मैं ये एक हकीकत बता रहा हूँ। और मर्द ज़ात जो है, वो चाहे या ना चाहे, औरत ज़ात उसको थोड़ा-सा भी लिफ्ट दे दे ना, तो मर्द ज़ात पिघल जाती है, औरत ज़ात नहीं पिघलती। मैं बाज़ार की मिसाल दे देता हूँ कि बाज़ार में जाएँ, अगर कोई मर्द किसी औरत को छेड़ दे, तो औरत ने वही चप्पल उठा के उसको दे मार ठा मारनी है। तो फिर मर्द डर के मारे किसी को कुछ बात नहीं कर सकते, ठीक है? जब तक औरत ना चाहे तो कोई भी मर्द हज़रात औरत की तरफ हरकत नहीं कर सकते। तो जब औरत बाज़ार में जाकर शो पीस बने, लोगों की आँखों का नज़ारा बनेगी, तो फिर मर्द कैसे खुद को कंट्रोल कर सकेगा? मर्द ज़ात तो वो पहले ही मर्दों के बारे में तो पहले ही बहुत बातें मशहूर हो चुकी हैं, बदनाम भी किया जा रहा है और भी बहुत सारे मामलात। तो ठीक है जी, क कभी-कभी किसी-किसी मौज़ू पे ना मुझे ये देखने को भी मिला है कि कहते हैं कि जी मर्द जो है ना वो वहशी दरिंदे बन चुके हैं। तो जो चलो मैं एक दफ़ा पहले भी एक पता नहीं किस मौज़ू पे बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि भई अगर मर्द वहशी बन चुके हैं तो उनको वहशी वहशी बनाया किसने है? ये भी तो देखा जाए ना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भी औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में। अगर औरत खुद को सेव रखेगी तो किसी मर्द की ज़रूरत नहीं है कि वो बुराई की तरफ कोई ऐसा मतलब कदम उठा सके। तो दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। लेकिन मेरी नज़र में ना नेकी या बुराई को फैलाने में औरत का किरदार ज़्यादा है। बाकी हर किसी की अपनी सोच है, मैं किसी का ये कहता नहीं हूँ। ऐज़ा वर्ड कह रहे हैं कि जी, जी, हमारे एक टीचर मिले थे, वो कहते थे मर्द हकीकतन वहशी होता है। देख रहे हैं ना, वही बात आ गई ना, मैंने आपको कहा है। अब मैं ये मौज़ू छेड़ूँ तो पता नहीं, हो सकता है कि अब इसमें बातें कोई अच्छी लगें या ना लगें। तो लेकिन चलें, आप अगर कोई बात करती हैं ना तो फिर मैं आगे देखता हूँ कि फिर वो मैंने बात करनी है या नहीं करनी। तो बस ये है कि बेसिक चीज़ ये है कि बुराई तो बुराई है, कोई भी उसको सपोर्ट करे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर माँ अच्छी हो ना, माँ बच्चों की तरबियत अच्छी करे तो फिर वो काफ़ी मतलब वाक़यात भी हैं। तो अगर माँ तरबियत करने वाली हो ना, नेक तरबियत करने वाली हो तो फिर बच्चे भी माशाअल्लाह से बाअमल बनते हैं, नेक औलाद बनती है। अगर माँ जो है वही कहते हैं ना कि पहली दरसगाह है माँ। किसी की तरबियत के हवाले से बात हो तो कहते हैं कि पहली दरसगाह जो है वो माँ होती है। तो अगर दरसगाह से ही सबक अच्छे मिलें तो बेड़ा पार हो जाता है, नहीं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होता है बस। अच्छा सिस्टर, आप मुझे सुन रही हैं तो मिक्स कीजिएगा। आपने ये बात की है ना कि मर्द हकीकतन वैसी होते हैं, तो चलो इस हवाले से फिर आगे कोई बात कर लेंगे। सब लोगों के कमेंट्स रुक गए हैं, क्या वजह बन गई है यार? कोई नेट का इश्यू तो नहीं हो गया? क्या हो गया है? मुझे तो किसी के कोई कमेंट्स ही नहीं शो हो रहे। ये हो गया भाई, को भज्जी तो नहीं गए? ओहो! देखा? इसका मतलब है मैं ठीक था, प्रॉब्लम बनी हुई थी, मैसेज ही नहीं आ रहे मेरे पास। अच्छा जी, सारिया कह रहा है कि आमीन, सारिया कह रहा है कि अल्लाह पाक हर किसी को अपने ज़मान में रखे। जी, जी, आमीन। मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं कि जी, टिब्बे दी रेत कमरे में डाल के हटे हैं, क्या बात है जी। फ़ैज़ल मुस्कुरा रही हैं, सोबिया साथ-साथ हैं, सपोर्टिंग मैसेज। वैसे आप क्या कहती हैं फ़ैज़ल सिस्टर कि अगर औरत मज़बूत हो
तो किसी मर्द की ज़रूरत है कि वो किसी औरत की तरफ देख जाए। हैप्पी स्मॉल फैमिली कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी लोग साथ-साथ मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं कि ऐसे ही हैं दिन को मौसम ठीक, रात को ठंड। सभी लोग साथ-साथ वेलकम करते हैं जी हैप्पी स्मॉल फैमिली। यकीनन वकास भाई होंगे। वकास भाई सुनाएँ तबीयत से ठीक है, मेरी प्यारी बहन ठीक है और गुड़िया ठीक है और अबराश भी ठीक है। 52 लाइक डन जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपके 52 लाइक डन का। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और सुनाएँ घर में सब खैर और आफ़ियत है? कैसा जा रहा है निज़ाम? सभी हम लोग साथ-साथ हैं, सारिया भी साथ-साथ हैं। सारिया आपके कमेंट्स बहुत कम हो गए हैं भई। और उस्मान पाजी नेट की वजह से यकीनन मैसेज का जवाब लेट दे रहे हैं। मैसेज बात कब हो जाती है और मैसेज कब आता है, क्योंकि नेट का बड़ा इशू है। हैप्पी स्मॉल फैमिली साथ-साथ हैं और सदब के ब्लॉग सॉरी सदब कह रहा हूँ मुँह से निकल गया। सोबिया, सोबिया हम लोग साथ-साथ हैं। शुक्रिया, काफ़ी सारे लोग पुराने जा भी चुके हैं और मेरे ख़्याल नेट की वजह से ना कोई थोड़ा प्रॉब्लम बन गई। एज़ल सिस्टर आप कहाँ गई हैं? अगर आपको मेरी बात को बुरी लगी है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। आपने अच्छी बात की थी, अच्छा मौज़ू छेड़ा था। आप जारी रखें बात को। तो हैप्पी स्मॉल फैमिली साथ-साथ हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है जी, माशाअल्लाह जी। हैप्पी स्मॉल साथ-साथ, सारिया साथ-साथ, हैप्पी स्मॉल फैमिली साथ-साथ, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मौज़ू छेड़ा था थोड़ा-सा ना कि बुराई को हमारी एक बहन है एज़ अ सिस्टर, वो कह रही हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में कहा था कि मेरे ख़्याल में जो है ना एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि नहीं, मेरे कमेंट शो नहीं हुए, ऊपर चले गए। अच्छा, मैंने देखा तो है लेकिन शायद पता नहीं कोई नेट की वजह में असल वो बना हुआ है ना इश्यू। एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि एक तो बच्चे भी रो रहे हैं। अल्लाह पाक खैर करे, बच्चे तो फिर बच्चे ही होते हैं ना। सारिया कह रहे हैं कि भैया आप किस सिटी से हैं? जी, मैं बेसिक तो लिया से हूँ और इस टाइम जो है ना ड्यूटी करता हूँ रहीम यार खान में। हाफ़िज़ सारिया, बेसिक मैं ज़िला लिया का रहने वाला हूँ, सूबा पंजाब का ना, और ड्यूटी करता हूँ रहीम यार खान में सिक्योरिटी की। ऐज़ल कह रहे हैं कि जी, औरत को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बट इंसान है ना। जी, बिल्कुल वो तो बात ठीक है। बस दुआ करें अल्लाह हम मुसलमान मुस्लिम्स पर फ़ज़ल करे, आमीन। जी, आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आपको एक जनरली बात बताऊँ ना, अब बाज़ार में जाएँ ना, तो किसी एक लड़के की तरफ कोई एक लड़की देख ले ना, तो वो लड़का उसका फिर सारे बाज़ार में पीछा नहीं छोड़ता। अभी जो उसने मुझे मेरी तरफ देख लिया, ठीक है? लेकिन अगर कोई लड़का किसी लड़की की तरफ देख ले, तो लड़की ने देख भी लिया है ना कि मुझे लड़के ने देखा है, तो वो उसकी परवाह तक नहीं करती। एक दुकान से निकलती है, शॉप से निकलती है, तो अगली शॉप में जाते-जाते उसको भूल जाती है। ये है औरत स्ट्रॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब औरत मतलब नहीं चाहती ना, तो किसी मर्द की ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी औरत को तंग करे। हैं, बुरे बंदे भी हैं। कुछ ऐसे लड़के ख़ास तौर पे आजकल की जनरेशन में हैं ऐसे लोग कि वो ना चाहते हुए भी ऐसे काम कर जाते हैं कि जिससे फिर हमारी माँओं-बहनों को तकलीफ़ पहुँचती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल जनरल जो मैंने अपना तजुर्बा किया है उसके हवाले से। सभी मतलब कह रही हैं कि कहीं न कहीं मर्दों का भी हाथ है। जी, बिल्कुल है। मैं कह रहा हूँ कि मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि भी ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भी मर्द तो हैं ही, मतलब आप उनको लूज़ समझ लें ना। लेकिन मैं तो औरत की तारीफ़ कर रहा हूँ, औरत की हिम्मत की हौसला अफ़ज़ाई कर रहा हूँ कि औरत जो है वो एक मज़बूत किला है समझें। सभी मतलब कह रहे हैं कि मर्दों को चाहिए कि अपनी औरतों को घर में सेफ रखें। जी, बिल्कुल, सही बात है, सारिया कह रहे हैं माशाअल्लाह जी, सभी मतलब कह रहे हैं कि बाहर जाएँ तो किसी तमीज़ के दायरे में रह के जाएँ। बिल्कुल, यही बात तो मैं कर रहा हूँ। हैप्पी इस्माइल भी कह रहे हैं कि मुद्दत हुई आँखों ने देखा नहीं वो मंज़र, एक चाँद निकलता था ज़रा शाम से पहले। लो जी सारिया साहब, तुहाडी शहरो-शायरी दा मौज़ू छिड़ गया। हैप्पी स्मॉल फैमिली से वकास भाई जो है ना शेरो-शायरी लेके आ गए हैं हमारे लिए। सारिया साथ-साथ हैं और एज़ अ सिस्टर भी साथ-साथ हैं। यकीनन बस उनके बच्चे जो हैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं, इस वज़ह से मौज़ू ज़रा गपशप का सही तरह से नहीं चल पा रहा। एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि जी, बिल्कुल, बट मैं वही तो कह कह रही हूँ,
बट मैं समझती ही मर्द ना को तबाही किया है, मर्द ने माशरे को तबाह किया है। जी, सही हो गया क्योंकि मर्द अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करता। बस वो आपका ज़िंदगी का एक्सपीरियंस जो है वो ठीक है माशाल्लाह से, आपके घर में मर्द हज़रात ने जो बातें कही हैं उन पे अमल हुआ है, तो माशाल्लाह से आपको लगता है कि मर्द हज़रात जो हैं आजकल वो अमल नहीं करवा रहे। तो बस बीच में ये जैसे मैंने भी कहा, और ये सारिया हमारे साथ-साथ हैं, हाफ़िज़ सारिया साहब, उन्होंने भी कहा था कि मर्द का काम है इस्लाह करना, बताना। तो अब आगे घर में माहौल ख़राब हो जाए मज़ीद, और बजाय औरतें जो हैं वो बात को समझने के उल्टा बतंगड़ बना दें, तो फिर ज़ाहिर बात है माहौल कैसे ठीक होगा। आप हैप्पी स्माइल फैमिली साथ-साथ हैं, सपोर्टिंग मैसेज करते हुए बहुत शुक्रिया। एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि आप देखें जो भी कोई औरत के लाइव होता है वहाँ सब मर्द बैठे होते हैं। हाँ, इसमें भी ठीक है, तो मैंने देखी हैं ऐसी लाइवें भी देखी हैं। और दूसरे टॉपिक पे भी लाइव चलती होती हैं, तो वहाँ पे फिर होते हैं, ज़ाहिर बात है, वो तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। सभी मतलब कह रही हैं कि कुछ मर्द अपनी औरतों को भी सजा कर बाहर लेकर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हैप्पी फैमिली कह रहे हैं साथ-साथ हैं, सारिया कह रहे हैं कि ओके भाई इजाज़त, ठीक हो गई हाफ़िज़ साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपकी आमद का, आप आए थे हमारे साथ, कुछ पल गुज़ारे हैं आपने, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आपके साथ वक़्त गुज़ार कर अच्छा लगा, और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, हम आपके लिए दुआगो हैं। एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि देखें आप अपनी आई में शर्म, पर्दा, इज़्ज़त रखें दूसरी औरत के लिए, ताकि कोई आपकी और निगाह ना डाले। जी, बिल्कुल सही बात है। अभी देखें जैसे शोबी मलिक ये कह रही हैं कि कुछ मर्द जो हैं, मर्द को चलो कह लें, या औरतें भी कुछ ऐसी होती हैं कि जो बाज़ार में बड़ा सज-धज के जाती हैं, घर में कभी वो सजी-धजी नहीं अपनों के लिए। बस यही मामला तो होते हैं ना, मिल के ही है बस। बस दुआ यही है कि कुल्ली रिज़ल्ट ये है कि अल्लाह पाक बस हम सबको गैरत दीनी और ईमानी अता फ़रमाए। सारिया कह रहे हैं कि आमीन, सभी मतलब कह रही हैं कि अल्लाह हाफ़िज़, और एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि अब मेरे हस्बैंड मुझे इंग्लिश ड्रेस, ये बहुत सा ड्रेस के प्रॉमिस नहीं देते। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया, हाँ, सही है। इसमें देखें ना, अगर आपके हस्बैंड आपको इंग्लिश ड्रेस नहीं ला के देते ना, तो आपने भी मतलब कभी मसला नहीं किया होगा। फिर आप शायद ये बोलेंगी कि पता नहीं भाई बार-बार औरतों को नीचा क्यों दिखा रहे हैं। मैं नीचा नहीं दिखा रहा, मैं औरतों की तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि वो मज़बूत किला है, जब औरत मज़बूत हो तो हर चीज़ बेस्ट होती है। अब आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने अच्छा काम किया। अब यहाँ पे मैंने ऐसी औरतें भी देखी हैं, वो कहती हैं अच्छा, ये सारी शरीयत और सारे मामलात मेरे लिए ही आ गए हैं। हमारे साथ मतलब आस-पास पड़ोस में मेरे साथ ऐसे वाक़यात मैंने सुने हैं। एक मेरा एक जानने वाला है बंदा, उसने मतलब अपने घर में कहा है कि बच्ची को पर्दा करवाना है ना, तो इस तरह बाहर मतलब बाज़ार में नंगे सर नहीं जाने देना या इस तरह के मामला, तो उन्होंने घर में पंगा डाल गया। उन्होंने कहा लो जी, बाकी सब इस तरह घूमे फिरे, बाकी बच्चियों हमारे रिश्तेदारों के बच्चे जो हैं, बेटियाँ, वो फलाँ तरह के कपड़े पहने, फलाँ तरह के मामलात करें, और हम जो हैं अपनी बेटी को इस तरह क्यों ना करें। तो हालाँकि वहाँ पे अब देखें ना कि मर्द कितना अहम किरदार अदा कर रहा है। मर्द कह रहा है अपनी बीवी को कि अपनी बेटी को जब भी बाहर निकालना है, बेशक वो भले छोटी बच्ची है, लेकिन अभी उसकी बेस है, उसकी तरबियत है। जब तक अभी जब इसी उम्र में छोटी बच्ची की तरबियत की जाएगी अच्छी, तो जब वो बड़ी होगी तो उसको पता होगा कि मैंने बापर्दा रहना है। अब मर्द तो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है, तो जब उसकी औरत जो है आगे से उसकी मर्द की बात नहीं मान रही, तो आप बताएँ कि फिर यहाँ पे गलती किस तरफ जा रही है? अब आपके हस्बैंड जो है आपको इंग्लिश ड्रेस नहीं लेके देते, तो आपने कभी घर में पंगा नहीं डाला, ठीक है? अगर आप घर में पंगा डाल रहे हैं कि लो जी हम तो बैरून मुल्क में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, तो यूके में रहते हुए भी मैं इंग्लिश ड्रेस नहीं पहन सकती, तो फिर आपके साथ मेरा रहने का फ़ायदा क्या? ये वो मामला तो फिर बिगड़ेगा ना। फिर आपके हस्बैंड ज़ाहिर-सी बात है घर को बचाने की खातिर, तो वहाँ का माहौल भी है, वहाँ को माहौल को मद्देनज़र रखते हुए फिर आपको मजबूरन ड्रेस ला के देते। तो फिर ये मामलात भी सारे हो जाते हैं। अकबर जट मेरा जानी आया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जट साहब क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक हो? तबीयत से ठीक है? हैप्पी स्माल फैमिली साथ-साथ, सभी हम लोग साथ-साथ एज़ल सिस्टर कह रही हैं कि पाकिस्तान में ही हालात ले लें, मर्द अपने घर के बहन-बेटी को नहीं
अच्छी निगाह से देखते, सब ने बहुत 60%। जी, जी, मैं मानता हूँ कि भी इधर भी हालात ऐसे ही हैं, और आपने जो बात की है वो हमारे इधर के हवाले से ही ज़्यादातर है। और बाहर की कंट्री की बात करें तो वो तो ओवरऑल ही मतलब वो तो है ना, गैर मुस्लिम है, वहाँ पे तो फिर भी चलो अगर वो इज़्ज़त करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो उनका तो माहौल ही और किस्म का है ना। जी, जी, अगर बीवी ना सुने तो छोड़ देना चाहिए। प्यारी बहन, आप देखें, यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात की है कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फिर बात किधर आ जाएगी कि मर्द ने काम गलत किया है। अज़रवर्ड कह रही हैं कि दोनों माँ-बाप को मिलकर घर में अच्छा इस्लामी माहौल बनाना चाहिए। जी, बिल्कुल अच्छी बात की आपने, सभी हम लोग साथ-साथ हैं। और एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि जी, जी, बिल्कुल मेरे हस्बैंड की हर बात सुनती हूँ। अच्छी बात है, सुननी चाहिए, सभी हम लोग साथ-साथ हैं। अकबर जट कह रहे हैं कि भाई सब ठीक है, माशाल्लाह जट साहब, और सुनाओ तबीयत से ठीक है? एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि बट आपकी एक बात से एग्री करती हूँ कि औरत चाहे तो गैर को घर को जन्नत बना सकती है। जी, बिल्कुल, मैंने तो अपना एक्सपीरियंस आपको बताया है ना, कि मैं अपने घर की बात भी कर रहा हूँ, जहाँ मेरे जानने-पहचानने वाले हैं, उनकी बात भी कर रहा हूँ। मेरे घर की अगर बात की जाए तो मैं ये कहता हूँ कि अभी मर्द का काम है कमा के लेके आना, और औरत का काम है घर को सँभालना। तो जब औरत घर को सँभालने का सोचती है ना, तो मतलब बड़े बुरे वक़्त में भी, हालात में भी घर का माहौल अच्छा बन जाता है। और औरत जो है अगर वो समझदारी का मुज़ाहरा ना करे, तो अच्छे भले मतलब इनकम और सारे मामलात सहूलियत होते-होते भी घर का जो है ना बर्बादी हो जाती है। एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि एज़ अ सिस्टर, मैं ना आपके मैसेज तकरीबन मेरे ख़्याल है रिव्यू में जा रहे हैं, मैं आपको ना ब्लू ना दे दूँ? चलें नेक्स्ट मैं देखता हूँ फिर। अच्छा जी। अकबर जट कह रहे हैं और आपका क्या हाल है? जी जानी, मैं खैरियत ठीक-ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का करम है। आप सुनाएँ अकबर जट भाई? मैं यार कल तेनू कॉल करदा रिहा, तू कॉल ही नहीं चुकी, पता नहीं, मैं कहा चलो शायद बैक कॉल करेगा, बैक कॉल भी नहीं आई यार तेरी। अदर सिस्टर कह रही हैं कि कहीं अच्छे कहीं बुरे लोग, बस क्या कहें दुनिया है। जी मेरी प्यारी बहन, यही तो मामलात हैं, यही तो बात है। सोबिया सिस्टर साथ-साथ हैं, और एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि बिल्कुल, बिल्कुल। और सोबिया साथ-साथ हैं, सभी मतलब साथ-साथ हैं। एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि रिव्यू में क्यों? वो मेरे ख़्याल है कोई-कोई मैसेज आपका जो है ना, वो स्पेस कम होती है या कुछ तरह के मैसेज होते हैं ना, तो वो हो जाता है, बाकी वैसे ठीक चल रहा है। एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि मैं कोई मुजरिम लो जी। नहीं, नहीं, तुसी मुजरिम नहीं हो, मैंने कब कहा है कि आप मुजरिम हो? सोबिया सिस्टर साथ-साथ है। आपसे तो बात करके अच्छा लग रहा है, टाइम भी अच्छा गुज़र रहा है, और साथ-साथ एक मौज़ू भी चल रहा है। और चलें, अभी तो इस टाइम लोग कम हैं लाइव में, पहले ज़्यादा थे, आपके आने से पहले। तो अगर वो साथ होते तो एक ये देखें, एक बहुत अच्छा इस्लाही मैसेज था। तो ताया की कॉल आई काफ़ी दिनों बाद इस टाइम। अच्छा जी। मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं कि ताया की कॉल आई काफ़ी दिनों बाद इस टाइम। चलें माशाल्लाह जी। और कैसी है उनकी तबीयत सेहत, कैसे हैं मिज़ाज उनके? आपके ताया जान के, सभी हमारे साथ-साथ हैं। अकबर जट कह रहे हैं कि नहीं यार, पता नहीं कब कॉल आई। अकबर जट, मैंने कल जो है ना, कल आपको कॉल की थी दिन को तकरीबन सेकंड टाइम। मैंने एक स्टेटस लगाया था आपके लिए, आपके नाम पे ना, बड़ा फ़नी स्टेटस था। तो चलो मैं आज कोशिश करूँगा कि आपको वो वीडियो वैसे सेंड कर दूँगा। एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि मेरा किचन में इतना काम, हाय! औरतों के काम ही किचन में होते हैं, और क्या होता है इनका काम? ये तो इस मामले में मैं इनको बेचारियों कहता हूँ, बेचारियाँ। बाकी तो चलो बस कहता हूँ कि जो भी हैं, लेकिन किचन के काम में बेचारियाँ हैं। क्योंकि अब मेरे घर में पड़ी है ना, तो मुझे पता लगा है, पहले इतना वो नहीं होता था। मेरी मिसेज़ जो है वो आज़ाद ख़्याल थी, मतलब कोई टेंशन नहीं थी। तो अब मेरा थोड़ा ड्यूटी का मसला बना है ना, तो अब वो बेचारी को मुझसे भी पहले उठना पड़ता है, सुबह-सुबह। अभी मौलाना साहब भी नहीं उठते, तो वो बेचारी उठ के किचन में काम कर रही होती, मेरे लिए खाना बना रही होती। तो फिर पता चलता है कि अब पता चलता है कि कितना काम मुश्किल है। अकबर जट कह रहे हैं, क्यों खैर थी? जी, जी जट, खैर थी। मैंने एक स्टेटस लगाया था फ़नी, वो मतलब आपके हवाले से मैंने लगाया था, जैसे फ़नी था ना, तो आपने ना कॉल अटेंड की, ना ही आपने मेरा स्टेटस देखा था। एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि नहीं, नहीं, मुझे घर के काम अच्छे लगते हैं, बट बच्चे तंग कर रहे हैं बहुत। आप बच्चों से तंग हैं? 2 ही बच्चे हैं मेरे ख़्याल है आपके, कितने, 2 बच्चे हैं ना? सो भी हम लोग साथ-साथ हैं। एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि आप 2 बंदे हैं तो। सोबिया साथ-साथ हैं।
اور اکبر جٹ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یار سویا تھا یا بازار میں ہوگا. ہاں شاید ہو سکتا ہے بازار میں ہوں. 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کو آپ کی بیٹیوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور اللہ پاک ان کو نیک بنائے اور ان کو لمبی اور اچھی صحت والی زندگی عطا فرمائے. تو آپ مطلب بچوں سے تانگ ہیں، لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے ترستے ہیں بچوں کے لیے کہ اللہ پاک ان کو دے. ایزل سسٹر کہہ رہی ہیں کہ ایزل عروہ. اچھا ماشاءاللہ. اچھا آپ نے چینل بھی انہی کے نام سے رکھا ہے، ایک کا نام ایزل ہے اور ایک کا نام عروہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نام تو پیارے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اکبر جٹ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بتانا جانی جی. جٹ میں لائیو ختم ہونے کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. ایزل سسٹر کہہ رہی ہیں کہ آمین آمین ثم آمین. ایزل سسٹر آپ کی مجھے ایک بات یاد آ گئی. میری مسز ایک دن کہہ رہی تھی آپ کی ویڈیو کے والے سے نا چینل کے مونیٹائز ہو گیا، ویوز آتے نہیں ہے. بلکہ نہیں، وہ تو شاید کسی اور کی بات کر رہی تھی. آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ وہ ہے ہی نہیں، اب ویوز اتنے آتے نہیں ہیں تو چینل مونو کرا کے بھی نا بڑا عجیب سا لگتا ہے. تو وہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے نا تو میں مطلب تنہائی میں بیٹھا ہوا بھی ہنس پڑتا ہوں کہ آپ کی وہ اس وقت بات کرنے کا انداز جو ہے وہ بڑا مجھے اچھا لگا تھا. ایسے سسٹر کہہ رہی ہیں کہ دل کے گہرائیوں سے دعا ہے اللہ جی آپ کو اولاد سے نوازیں. آمین انشاءاللہ جی. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، شرف قبولیت عطا فرمائے. بہنوں کی دعا بھائیوں کے حق میں بہتر ہوتی ہے. اور سسٹر ایسے کہہ رہی ہیں کہ جی جی میرے ویوز نہیں آتے. انشاءاللہ آ جائیں گے، بس آپ لگے رہیں، آ جائیں گے. ایک نہ ایک دن ہو ہی جائے گا گرو. اصل میں پتہ ہے کہ ایز اے سسٹر ایک اور بات ہے، ہم لوگ جو ہے نا ہم مطلب کنٹینٹ وہ نہیں دے رہے نا. جس طرح کا آپ نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا ہے اس کے اپوزٹ ہم کنٹینٹ نہیں بنا رہے، ہم کنٹینٹ دکھا نہیں رہے، جس وجہ سے مطلب ہماری ویڈیوز ویو نہیں لے رہی نا. آج اپنی ایک ایکسپیریمنٹ کے لیے آپ 10 سے 15 ویڈیو بنا لیں، ٹھیک ہے، وہ دوسری ٹائپ کی، اور دیکھنا پھر آپ کی ویڈیو کیسے وائرل ہوتی ہیں. ان میں سے 10-15 میں سے کوئی نہ کوئی ایک وائرل ہوگی، پھر آپ کو دیکھنا کہ اس کے بعد آپ کی ہر ویڈیو وائرل جائے گی. لیکن ہم یہ کرنا نہیں چاہتے نا، نہ ہمیں یہ زیب دیتا ہے. بٹ مجھے ٹینشن نہیں ہے، یہ وائی ٹی مصیبت ہے. اور سچ بتاؤں وائی ٹی خود گیم بھی کرتا ہے. خود گیم بھی، ہاں خود گیم بھی کرتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور ایزل سسٹر کہہ رہی ہیں کہ اب میں کیئر نہیں کرتی. اچھا اچھا ٹھیک ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس چلیں، آپ نے ایک ٹائم پاس کے لیے بنایا ہوا ہے نا، چلو کام چل ہی رہا ہے. ایز اے سسٹر کہہ رہی ہیں کہ چھوڑیں بھائی، اس کے کنٹینٹ بناتے بناتے اوپر سے بلاوا آ جائے گا. ایسے ہی ہے. مبشر بھائی کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبشر بھائی کیا حال چال ہے؟ خیریت؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو اپنے لائیو میں. ایز اے سسٹر کہہ رہی ہیں کہ پراپرٹی بچے گھر 1 سال دیا میں نے اس کو. ہائے 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 ہائے. چلے پھر بھی آپ نے 1 سال دے کے مونو تو کروا لیا. میرا تو مونو بھی نہیں ہوا، میری مونیٹائزیشن بھی ریجیکٹ ہوگی. لیکن اب پھر بس لگ پڑا ہوں آہستہ آہستہ. چلو اللہ خیر کرے. مجھے ویسے مونیٹائزیشن کا لالچ نہیں ہے. میں نے اپنے شوق کے لیے بنایا تھا کہ چلیں اپنی کوئی زندگی کی کوئی یادگار چیزیں جو ہیں وہ بندہ اپلوڈ کر لیتا ہے، پھر بندہ کبھی بھی بیٹھا کہیں بھی بیٹھا دیکھتا رہتا ہے. اچھا اچھا فرسٹ پرائرٹی دی ہے. پرائرٹی گھر ہے. اب جی بالکل گھر کو ہی فرسٹ پرائرٹی سمجھنا چاہیے. چلے لیکن کوئی نہیں، آپ نے چینل مونو کروا لیا ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں. ایک ٹائم پاس شکر میں اللہ سے ہی. مبشر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے. نعیم بھائی آپ سنائیں کیسے ہو؟ جی خیریت الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے جی. مبشر بھائی آپ سنائیں آپ کی طبیعت سے مزاج کیسے ہیں؟ اکبر جٹ سپورٹنگ میسج کرتے ہوئے بہت شکریہ. اکبر ڈیوٹی تے ہیں یا کار ہیں؟ ڈیوٹی بدل گئی ہے، دسنا ذرا. اور ایز اے سسٹر کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو اس وائی ٹی پہ ڈالا تھا، ہسبینڈ نے ڈالا تھا، مجھے آج بھی زہر لگتا ہے. آپ ایسا کریں، آپ یہ اپنا چینل مجھے دے دیں اور آپ زہر سے آزاد ہو جائیں، آپ فلودہ آئس کریم کھائیں. اچھا ایک اور بات ہے، آپ ہسبینڈ کو ہبی کیوں لکھتی ہیں؟ ہبی آپ مطلب آپ کو یہ نام پیارا ہے یا آپ نے ویسے ایک مطلب پیار سے رکھا ہوا ہے، یا بلاتی ہیں، یا ویسے شاید آپ یوز اس طرح کرتے ہیں؟
अकबर जट सपोर्टिंग मैसेज करते हुए बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और एज़ल सिस्टर कह रही हैं कि वाईटी तबाही तो मुझे सुतीली वाईटी तबाही अच्छा वाईटी तभी तो मुझसे सुतीला सलूक करता है। नहीं, नहीं कोई मसला नहीं है, आप टेंशन ना लें। आप इस तरह की टेंशन अच्छा घर ड्यूटी केड़ी है अकबर? ड्यूटी दसना आजकल केड़ी हो गई है? सभी में लोग साथ-साथ एज़ सिस्टर कह रही हैं कि कल बोला हबी को कि मैंने कि मेरे ब्रदर इन लॉ को दे दें। हबी व्लॉगिंग करता है। हबी ने बोला नो, एक दिन व्यूज़ आ जाएँगे। हाँ, एक दिन व्यूज़ आ जाएँगे, मैं तो यही कहता हूँ। अकबर जट कहते हैं अगर बीवियों को शौहर ज़हर लगते हैं तो मर्दों को भी बीवियाँ ज़हर ही लगती होंगी ना। नहीं, नहीं, वो अकबर भाई वो चैनल का बता कह रही हैं एज़ अ सिस्टर, अगर आप उनकी बात का जवाब दे रहे हैं तो वो कह रही हैं कि चैनल का कह रही हैं कि भी ये मतलब फ़ज़ूल काम टाइम पास इनके हस्बैंड ने इनको बनवा के दिया है कि चलो टाइम पास के लिए ना। तो अगर आप वैसे कोई बात कर रहे हैं तो वो एक फ़नी तो वो एक अलग बात है। अगर बीवियों को शौहर ज़हर लगते हैं तो मर्दों को भी बीवियाँ ज़हर ही लगती होंगी ना। हाँ जी, ये तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, अगर एक तरफ हालात इस तरह हुए तो दूसरी तरफ भी फिर वैसे ही होंगे। तो मुबशर से सपोर्टिंग मैसेज करते हुए, सोफिया मतलब सपोर्टिंग मैसेज करते हुए बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो एज़ अ सिस्टर अगर देख लें आपका नहीं दिल मानता तो फिर आप ऐसा करें ना कि आप अपने हस्बैंड को बोलें कि फिर वो खुद चलाएँ, हो सकता है कि उनके चलाने से कुछ चैनल ग्रो कर जाए। और एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि नहीं बीवियों को शौहर ज़हर लगते, ना शौहरों को बीवियाँ। अब ये ज़िंदगी मौत का साथ है, अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह ने बनाया। जी, बहुत अच्छी बात की है आपने। और सोच भी होनी चाहिए यही, और अमल भी होना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है। एज़ अ सिस्टर ने कहती हैं कि ना बीवियों को शौहर ज़हर लगते, ना शौहर को बीवियाँ। अब ये ज़िंदगी मौत का साथ है, अल्लाह ने बनाया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने। आपने तो मेरा दिल जीत लिया ये बात करके ना। और अकबर जाट कह रहे हैं कि नहीं भाई मैंने फ़नी जोक लगाया है, मैंने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। जी, जी, ज़बरदस्त, मैंने भी इसलिए वज़ाहत कर दी थी। मैंने कहा अगर आपने किसी का मैसेज का कहा है तो वो ये है, अगर आपने वैसे कहा है तो वो भी ठीक है। और ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या कहने हैं आपके जी एज़ अ सिस्टर। बहुत खुशी हो रही है कि चलें माशाल्लाह कोई तो ऐसी सोच रखते हैं। एज़ अ सिस्टर कह रही हैं कि हस्बैंड के नाम से है तो इजाज़त मिलती है। हस्बैंड नेम से ही तो इजाज़त मिलती है। इज़्ज़त मिलती है। जी सॉरी, इज़्ज़त मिलती है। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बस अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। असल में ये बड़े मामलात होते हैं कि बस देखिए जब मैं इसीलिए तो बार-बार कह रहा हूँ कि भी औरत जो है ना वो मज़बूत किला है, औरत जो है ना मज़बूत किला है। जब औरत घर को समेट के रखेगी ना, सँवार के रखेगी तो पूरा घर जन्नत बन जाएगा। जब औरत घर का माहौल नहीं रखेगी ना सही, तो फिर बाकी भी सारे ख़ाविंद जो है हस्बैंड ख़ास तौर पे ठीक है, बीवियाँ जो हैं वो घर का ही काम करती हैं, बाज़-औक़ात थक जाती हैं, उकता भी जाती हैं, औरत ज़ात जो होती है। लेकिन ये क्या है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ घर का काम होता है। मर्द हज़रात जो होते हैं उनको ड्यूटी के दौरान, काम के दौरान बाहर हज़ार बंदों से मिलना पड़ता है, पता नहीं किस-किस तरह के लोगों से वाबस्तगी होती है उनकी। तो उनका ज़हन और किस्म का ना जब घर आते हैं तो ज़िच हो चुका होता है। तो जब औरत घर आते ही मर्द को खुश अखलाकी से बुलाएगी, तो मर्द भी बीवी का खैर-ख्वाह होगा। तो इसी तरह से ज़िंदगी खुशहाल गुज़र जाती है, छोटी-छोटी बातों से, छोटे-छोटे फूल पौधे समेटते रहें, खुशियाँ समेटते रहें, बाँटते रहें, तो ज़िंदगी खुशहाल गुज़रेगी। औरत को ज़ाहिर-सी बात है तकलीफ़ें तो बहुत बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, लेकिन औरत को इसीलिए अहमियत नहीं मुकाम दे दिया गया ना इतना बड़ा। और फिर मुकाम भी दिया और फिर उसको जो इज़्ज़त दी है हर रूप के अंदर। वो मैं एक मैसेज सुन रहा था कि बेटी, अगर औरत एक जो ज़ात है वो बेटी बनकर आए तो घर में रहमत, ठीक है? और बाप जो है उसके ऊपर यानी कि एक साए की मानद है। जब वही औरत जवान हो जाती है, लड़की जवान होती है, तो भाई जो होता है वो उसका मुहाफ़िज़ बन जाता है, ठीक है?
اور پھر وہی عورت جب اور تھوڑا جوان ہوتی ہے اپنے گھر کو جاتی ہے تو اس کو ایک شوہر ملتا ہے، تو شوہر اس کا جو ہے وہ بن جاتا ہے ایک ذمہ دار یعنی کہ تھامنے والا، اور پھر وہی عورت جب ماں بنتی ہے تو پھر اس کے بچے جو ہیں اس کا بزرگی کا سہارا بنتے ہیں، اور اس کو ایک جنت اس کے پاؤں کے نیچے جنت کو رکھ دیا جاتا ہے، اتنا بڑا مقام دے دیا جاتا ہے۔ تو عورت تو بہت خوش نصیب ہے اگر وہ اس انداز سے دیکھے جس طرح سے ایز اے سسٹر آپ کہہ رہی ہیں نا، اس طرح سے اگر وہ ماحول سے سوچے تو عورت بہت لکی ہے کہ اس کو ہر سٹیپ پہ مطلب کوئی نہ کوئی محبت والا رشتہ مل رہا ہے اور سارے محرم رشتے مل رہے ہیں۔ ایز اے سسٹر کہہ رہی ہیں کہ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ شادی کے بعد ایک لڑکی جب نکاح میں آ جائے تو لوگوں کے نظروں سے ہٹ جاتی ہے، اب وہ فلاح کی بھی بیوی کہلاتی ہیں، لڑکے نظر نہیں ڈالتے۔ بالکل یہی بات ہے۔ محمد اقبال مضمان کہہ رہے ہیں کہ تایا پوچھ رہے ہیں حج اپلیکیشن جمع ہو رہی ہیں؟ جی جی، آپ نے پھر کیا بتایا؟ میں نے تو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں تو ادھر ہو رہی ہیں، بینکوں کے باہر انہوں نے لگا دیا ہے حج اپلیکیشنز کا۔ میرے خیال میں تو آپ کے تایا جی جو ہیں وہ لیٹ ہو رہے ہیں حج کے لیے، ان کو جلدی اپلائی کر دینا چاہیے۔ ایز اے سسٹر کہہ رہی ہیں کہ کہیں جاؤ سسرال میں تو فلاں کی بیوی آئی ہے۔ جی بالکل، فلاں کی بیوی آئی ہے۔ ایز اے سسٹر کہہ رہی ہیں بس ہسبینڈ اچھا ملے تو، اور عورت کو بھی اپنا 100% دے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بس یہ تو یہ بات الگ ہے، ظاہر بات ہے کبھی کسی گھر میں مرد حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ عورتوں کی زندگی جو ہے وہ اجرم بنا دیتے ہیں۔ تو یقینی بات ہے کہ آپ کو ہمارے بھائی اتنے پیار کرنے والے ملے ہیں، اتنے اچھے ملے ہیں، تو آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہی ہیں، تعریفیں کر رہی ہیں۔ کچھ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں لوگ جو بیچارے اسی طرح جیسے آپ اچھی باتوں کے ساتھ ہماری بھی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں، تو کچھ اس طرح کی ہماری بہنیں مائیں آتی ہیں، وہ اتنا دکھی ہوتی ہیں کہ بس وہ اور تو پھر کچھ کر نہیں سکتی، یہاں پہ بیٹھ کے اپنے مطلب دل کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا کر لیتی ہیں۔ تو اکبر جٹ کہہ رہے ہیں عورتیں بڑی خوش نصیب ہوتی ہیں، جب نکاح میں آتی ہیں تو مرد جیسی ہستی ان کو نصیب میں ملتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے جی، مرد جیسی ہستی ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی۔ محمد عثمان کہہ رہے ہیں کہ اوکے، چلو جی زبردست ہو گیا۔ حضرت سسٹر اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے، بہت اچھی اچھی باتیں کر کے ہمارے ذہنوں کو بھی وسیع کر رہی ہیں آپ، اور اچھی ٹپس بھی بتا رہی ہیں۔ آپ کی کئی باتوں سے ہمیں بھی کئی چیزوں کے خیال آ رہے ہیں، کئی چیزوں کا مطلب امیدیں لگ رہی ہیں، اور ایک اچھی جیسے کہتے ہیں کہ اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ مبشر حسین ساتھ ساتھ ہیں، بہت شکریہ مبشر حسین سپورٹنگ میسج کے لیے۔ سنائیں مبشر بھائی، آپ ڈیوٹی پہ ہیں؟ آپ کی میرے خیال ہے مسلسل ڈیوٹی رات کی ہوتی ہے مبشر بھائی؟ تو رات کو تو سردی میں جاگنا بہت مشکل ہوتا ہے یار، ہماری 15 دن ہوتی ہے رات کی ڈیوٹی، تو سردیوں میں تو مت بچ جاتی ہے۔ ابھی ہماری چینج ہوئی ہے، کل کی ڈیوٹی دن کی ہو گئی ہے، آج دن کو گئے تھے، کل ہاف دن کیا، آج سے پھر فل سٹارٹ ہے ڈیوٹی دن کی۔ مبشر حسین سپورٹنگ میں سے کرتے ہوئے ساتھ ساتھ بہت مہربانی، شکریہ جی، آپ کی محبتوں کا اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ایز اے سسٹر آپ کے ہاں اس ٹائم کیا ٹائم ہے بتائیے گا ذرا، ادھر دن ہے یا رات ہے؟ اور آپ ساتھ ہیں تو اگر آپ چلی گئی ہیں تو پھر اللہ کی امان میں، لیکن کوئی بھی بندہ جو میری لائف میں آیا بیٹھا ہے جانے سے پہلے اللہ حافظ لازمی بول کے جایا کرے، تاکہ پتہ ہو کہ فلاں بندہ جا چکا ہے یا فلاں بندہ ساتھ ہے لیکن ابھی میسج نہیں کر پا رہا یا نیٹ ورک کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہے۔ بشر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں بھائی ڈیوٹی پر ہوں، وہی نا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ڈیوٹی لگتا ہے مسلسل رات کی ہوتی ہے شاید۔ سپورٹنگ میسج کے لیے شکریہ۔ اکبر جٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دن کے 12 بجنے والے ہیں بھائی صاحب، کہڑے 12 بجے آئی پے ہو تسی؟ ہے جی جٹ صاحب،
मुशर भाई कह रहे हैं कि जी नाइट ड्यूटी होती है। अच्छा, ड्यूटी आपकी 12 घंटे होती है या 8 घंटे होती है? वैसे तो जो पंप वाले होते हैं उनकी ड्यूटी तकरीबन ईज़ी होती है, कुछ टाइम के बाद फिर उनको रेस्ट करने के लिए मिल जाता है। अकबर जट कह रहा है मैं अफ्रीका में रहता हूँ भाई। लगता है आपने भी वो वीडियो काफ़ी देख ली है ना, मैं यूके में पैदा हुई, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे उर्दू नहीं आती। जट साहब, चलो जी, ज़बरदस्त। और अफ्रीका ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। सपोर्टिंग मैसेज शुक्रिया साथ-साथ। बजट कह रहे हैं कि मैं अफ्रीका के जंगल में घूमने की ਤਿਆਰੀ ਕਰ रहा हूँ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਘੁੰਮਿਓ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਘੁੰਮ ਪਿਓ ਫਿਰ। मुबशर भाई कह रहे हैं कि जी 12 घंटे होती है। अच्छा, फिर तो बहुत टफ ड्यूटी है यार आपकी, हमारी भी 12 होती है। लेकिन आपको उधर रेस्ट वगैरह का टाइम मिल जाता है या नहीं? हमें तो नहीं मिलता, हमारी तो ड्यूटी भाई डंडा सर्विस है। अकबर जट कह रहे हैं सर्दी बहुत है भाई। भाई जंगल की सैर करनी है, फिर सर्दी तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाँ जी, जंगल की सैर करना कोई आसान काम है? सपोर्टिंग मैसेज करने वाले का बहुत शुक्रिया, जो सीसीटीवी हजरात हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो रिएक्ट कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। छोटे-छोटे दिल उड़ाई जा रहे हैं एक साइड तो। जो आए हैं हमारी लाइव में बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। एक लाइक भी बढ़ा है और एक व्यूज़ भी बढ़ा है। सीसीटीवी हजरात आने वालों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं कि जट साहब आप कब गए अफ्रीका? हाँ जी, जट साहब दसो जी, उस्मान भाई पूछ रहे कि ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਗਏ ਅਫਰੀਕਾ? ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। सुपर जट कह रहे हैं अभी नया-नया आया हूँ भाई। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ-ਚੂਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦੇਈਂ ਯਾਰ, ਜਾਂ ਬਲਕਿ ਆਂਦਾ ਹਲੇ ਹੀ ਆਈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਵਗੈਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰਾ ਦੀ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। मशहूर भाई कह रहे हैं कि जीने नहीं जी नहीं भाई, रेस्ट नहीं मिलता शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। ओए होए 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 होए! तो अब यार को थोड़ा बहुत भी टाइम नहीं मिलता यार। हमारे यहाँ तो इधर पंप में हमने देखा है कि बाद में थोड़ा बंद, रात 1-2 बजे के बाद थोड़ा रिलैक्स मोड हो जाता है, बारी-बारी रेस्ट भी कर लेते हैं लोग। तो आपके यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है क्या? अकबर जट कह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे भेज दूँ या लेके आऊँ? अब ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ WhatsApp ਤੇ ਚੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਗਰਾਨੀ ਵੈਲਕਮ, ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਮਰਹਬਾ, ਮਰਹਬਾ, ਵੈਲਕਮ ਯਾ ਹਬੀਬੀ। ਅਲੀ ਗਰਾਨੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ नवे अंदाज ਨਾਲ ਹੀ आ रहे हो। सभी हमारे साथ साथ है। अकबर जट कह रहे हैं मैंने आना है गर्मियों में। गर्मियों में यार सर्दियों की सौगात खत्म हो जाएगी। कोई मसला नहीं है, सुक्की भुजी लेके आ जाओ ना। अकबर जट कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया अली भाई जी। और माशाल्लाह आज बड़े अरसे बाद पुरानियां संगतां पुरानियां महफिलां जुड़ रही ने। अकबर जट कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल हैं जी, ठीक हो? जी उस्मान भाई भी नाल ने, लेकिन उस्मान भाई कह रहे हैं कि भी नैट का बड़ा मसला है ना उत्थे। ते कहंदे है कि जी नैट जोड़ा ना वो 2 घंटे बाद मैसेज साढ़े को पहुँचता। अली गनी कह रहे हैं कि वालेकुम अस्सलाम भाजी। मुबशर भाई कह रहे हैं कि नहीं भाईजान, 1 सेकंड का भी नहीं मिलता रेस्ट। अल्लाह अकबर! यार मुझे तो ये समझ नहीं आती कि भी आपकी ड्यूटी फिर इतनी टफ क्यों है यार? चलें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अली गनी कह रहे हैं कि जट साहब वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद उस्मान भाई भी कह रहे हैं कि वालेकुम अस्सलाम, आपकी दुआएँ। चलो जी माशाअल्लाह जट साहब जी, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ।
बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। आज मेरी तकरीबन पुरानी फैमिली आ चुकी है, अली गनानी, मोहम्मद उस्मान, मुबशर हुसैन, अकबर जट। क्या बात है! हैप्पी स्मॉल फैमिली वाले भी आए सी, लेकिन थोड़ी देर बाद एवें मिनट 2 मिनट हाज़री लवा के फिर चले गए। ज़ाहिर गल है टाइम भी काफ़ी हो चुका है रात दा, फिर नेट की प्रॉब्लम भी है। अली गनानी कह रहे हैं कि जट साहब कैसे मिजाज हैं? अकबर जट कह रहा है कि अली गिलानी भाई आप भी सलामत रहें, उस्मान भाई आप भी सलामत रहें, दोनों भाई सदा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया जट साहब, नेक दुआवां दा, नेक ख्वाहिशात दा, अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे जी, बहुत मेहरबानी। अली गनी कह रहे हैं कि माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं कि वालेकुम अस्सलाम, आपकी दुआएं। मोहसिन अली भी सपोर्टिंग मैसेज नाल ना, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। ਸਭ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੈਸੇ ਭਾਜੀ, ਘਰ ਸਭ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਹੈ? ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਸਭ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਹੈ? ਔਰ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ ਦੀ? अली गनी कह रहे हैं कि शुक्रिया जट साहब, और जट साहब कह रहे हैं कि अली भाई माशाअल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अली गनी सपोर्टिंग मैसेज हार्ट इमोजीज भेजते हुए हैं, दिल भेजते हुए हैं, नीले नीले हत्थां नाल ठंड ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਜੰਮ ਚੁੱਕੇ ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। अली गनी कह रहे हैं कि उस्मान भाई आप कैसे हो? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਭਾਜੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਜੀ ਹੈ। मुबशर हुसैन सपोर्टिंग मैसेज साथ साथ, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। मुबशर भाई अभी गवर्नमेंट ने तनख्वाहें बढ़ाई हैं, तो आपकी भी तनख्वाह में कोई इजाफा हुआ है या नहीं हुआ? मसलन नालना सपोर्टिंग मैसेज, शुक्रिया जी। मुसलमान कह रहे हैं कि अभी तो ये नहीं, ये नए नए गए हैं, जब ये वापसी के करीब होंगे तब इनको याद करवाएंगे कुछ लाने के लिए। ਲਓ ਜੀ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਡਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਪਾਣਗੇ ਫਟੀਕ ਚੰਗੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੁਣ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਉਸਮਾਨ ਭਾਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਪਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੈਸੇ। अली गनी कह रहे हैं कि भाजी सब ठीक हैं, सलेमान भाई ठीक नहीं, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक करम करे। क्या हो गया यार भाजी? अल्लाह पाक खैरियत फरमाए यार। अल्लाह पाक उन्होंने सेहत देवे, अल्लाह पाक अपनी ज़मानत च रखे। सारे जने दुआ करो यार, अली भाई दी भाई दी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक उन्होंने शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मेरे पीर साहब फरमांदे हुंदे ऐ, उन्हां दी बहुत प्यारे अल्फाज ने, मैं ते अक्सर उन्हां नूं कापी करना हुंदा। मैं कहना हुंदा कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब दे कदमां दी खैरात दा सदका अल्लाह पाक उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमावे। मुसलमान कह रहे हैं कि आपकी दुआएं अली भाई, मैं भी काफ़ी दिन बाद आया लाइव में। जी जी बिल्कुल, तुसी भी काफ़ी दिन तो बाद आए हो, और लेकिन मैं भी मतलब काफ़ी दिनों तो बाद की लाइव स्टार्ट। आज मेरा तीसरा कि चौथा दिन है मैं लाइव कर रहे हैं। और उस्मान कह रहे हैं कि अली भाई कह रहे हैं कि वेलकम उस्मान भाई। उस्मान भाई कह रहे हैं कि नोमी भाई आप शाजिया की याद आ रही है, आप ही शाजिया की, आप ही शाजिया की याद आ रही है, तो उनको आप कमेंट्स कर दें उनके वीडियो पे, या उनकी लाइव मेरे ख्याल से शायद आती होती है, उनका भी यही टाइम है 7-8 बजे का ना। तो अब मैं क्या कहूँ भाई, आपके लिए तो मेरी जान हाज़िर है, लेकिन बस अब यार ये बातें इधर करने की नहीं है, मैं अब क्या बताऊँ आपको। सॉरी, सॉरी, सॉरी।
मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं, मैं समझा हूँ कि अली भाई कह रहे हैं, मैंने वो अली भाई समझ के बात कह दी है, सॉरी। वो आपकी शाज़िया यार अब मेरी लाइफ़ में नहीं आती, वो भी उनकी मसरूफ़ियत होगी। मैंने तो वैसे काफ़ी टाइम छोड़ दिया है, यूट्यूब आपके सामने ही है, तुहानू पता ही है काफ़ी टाइम तो बाद हुण दोबारा कुछ शुरू कीता है। ते लेकिन आपकी शाज़िया भी शायद बस वो अपनी मसरूफ़ियत च बिज़ी हो गईयां ने। मुबश्शिर हुसैन कह रहे हैं कि जी नहीं भाई, नहीं हुआ इज़ाफ़ा। अल्लाह अकबर। और अली गिलानी कह रहे हैं कि अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुसलमान कह रहे हैं कि थैंक्स अली भाई। हाँ, सॉरी यार, उन्होंने अली भाई का एक मैसेज मेरे को मिस हो गया। अली गिलानी कह रहे सन कि वेलकम उस्मान भाई। ते उस्मान भाई यार काफ़ी टाइम हो गया ते इस वजह तो ना हुण आपकी शाज़िया नहीं आ रही मेरी लाइफ़ विच। अकबर जट कह रहे हैं कि अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जी, जी, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ फरमाओ कि अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए यार। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਵਕਤ ਬਸ ਹਰ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੂਰ ਰੱਖੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਫਿਰ ਅਪਸੈਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। बस दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हों दे भाई नूं अल्लाह पाक सलामत रखे। मुश्ताक भाई कह रहे हैं कि दो जहां का मालिक उन्हें सेहत दे। जी आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उस्मान भाई कह रहे हैं कि उनकी लाइव भी आपके साथ ऑन हुई। अच्छा, हो सकता है, पता नहीं उस्मान भाई, मैं तो काफ़ी दिनों ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਛ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਛ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦਾ ਆਲਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਜਾਂ ਬੜੀ ਹੱਦ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। अल्लाह अकबर। अली गनी भाई तुसी नाल ही हो। अली गनी कह रहे हैं कि आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। जी, अल्लाह पाक सलामत रखे यार। सब बंदे दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पाक सब दी दुआ नूं अपनी बारगाह शरफ़ कबूलियत अता फरमाए और साडी दुआवां दा सदका वसीला अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब दी मुहब्बत दे वास्ते नाल अल्लाह पाक तुहाडे भाई नूं शिफाए कुल्ली अता फरमाए और अपनी हिफ्ज़-ए-मान दे विच रखे तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ यार। खास तौर ते अली भाई तुहाडे वास्ते मेरी दुआ है। पता नहीं शायद मैनूं गल कहनी चाहिदी कि नहीं, लेकिन मेरा ना दिल और ज़ुबान खामोश नहीं मैनूं रहन दे रहे। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक तुहानूं फिल वक़्त हर दुख, परेशानी, मुसीबत और खास तौर ते इन्हां सदमिਆਂ ਤੋਂ अल्लाह ज़्यादा महफूज़ रखे। ਤੁਸੀਂ सलमान भाई ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਾਈ, ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਵਜ਼ਾਹਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੈਮੋ ਦੈਮ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਕਬਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਅਲੀ ਗਨੀ ਕੇ ਭਾਈ कह रहे कि आमीन सुम्मा आमीन और अली गनी भाई कह रहे कि जज़ाकल्लाह। अली भाई अगर मेरी ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪਸੰਦ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖ਼ਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਸ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗਾ मैं कह ਦਿੱਤਾ। उस्मान भाई कह रहे हैं कि सेम सेम नोमी भाई। जी आमीन सुम्मा आमीन।
اللہ اکبر عثمان بھائی ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਾਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਨਹੀਂ علی نبی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں سمجھ رہا ہوں بہت مہربانی شکریہ علی بھائی علی بھائی ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੈਸਟ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਤਬੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ہاں بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا پتہ کر کے بتاؤں گا اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا چلو اللہ خیر کرے جی چلو جی اللہ پاک خیر کرے علی بھائی عثمان بھائی اور کوئی گل بات کوئی حال حوال ہے تو گپ شپ تو پھر کوئی گل کرو کوئی تہاڈا سوال کو جواب ہوئے گا تو پھر میں وہ جواب داں گا ادروائز پھر میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی لائف بند کراں علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی کی وجہ سے جاگ رہا ہوں اللہ پاک خیر فرمائے دا مطلب ہے کہ طبیعت انہاں دی پہلے بھی مطلب نارملی تھوڑا بہت ہو جاتا ہوندا ہے یہ مطلب ہے کہ طبیعت پہلے دی نسبت زیادہ خراب ہے اللہ پاک انہوں نے صحت دے وے یار بشر بھائی اس موٹے میسج تو بہت مہربانی شکریہ یار عثمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھ لیا چلو ہمارے تو ساڈے وال تے ادھر میں تے ویکھ رہا بینر وغیرہ لگے اچھا بھی کوئی پتہ نہیں پاویں پچھلے سال دے لگے ہون لیکن میرا خیال ہے کہ بھی لگدے تے نویں سال دے نے کیونکہ اشتہار وغیرہ جڑے نا بالکل مطلب نویں نے پھٹے پرانے نہیں ہے نا ساڈے وال تے لگنا شروع ہو گئے نے مزید نہ ہویا تو پھر کسی نال رابطہ بھی کر لیں گے تے پوچھ دس لواں گے بھی کی صورتحال ہے تسی بھی اتھوں اپنے معلومات لیو چلو میں بھی لے لاں گا میری بھی کل پرسوں گل ہوئی سی میں کل گل ہوئی سی یا اج گل ہوئی نہیں کل ہوئی سی میرے خیال شاید اسے حج دے حوالے نال ہی تاں ہی ابو نے تانوں گل کیتی ہے نا علی گڑھ کے بھائی کہہ رہے کہ اوکے بھائی پھر ملیں گے جی بھائی بہت مہربانی شکریہ اللہ پاک تانوں سلامت رکھے اسی تواڈے لیے تواڈے بھائی لیے دعا گو اور تسی اپنی دعاواں سانوں یاد رکھیو بہت مہربانی شکریہ تشریف آوری دا چلو اسے بہانے بھائی دی صحت دا حوالے نال بھی گل ہو گئی ہے چلو اپڈیٹ مل گئی انشاءاللہ پھر گل بات ہوئے گی جی بہت مہربانی شکریہ علی نے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے جس حال میں رکھے جی بالکل بھائی اللہ کا شکر ادا تو کرنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن یار انسان ہے نا ہم لیکن ہماری مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہماری برداشت سے زیادہ تو بوجھ نہیں ڈالتا لیکن پھر بھی انسان ہے نا انسانیت کے ناطے مطلب ہم تھوڑا مایوس ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھی یار بہرحال اللہ پاک کی ذات اپنا کرم فرمائے رحم فرمائے یار عثمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ حافظ جی بہت مہربانی شکریہ عثمان بھائی اللہ حافظ اور علی گڑھ بھائی تہاڈا بھی بہت شکریہ انشاءاللہ اللہ حافظ ہو گیا ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر بس میں بھی اپنے لائیو اینڈ کرنا تقریباً 10:30 ہو چلے ہیں بس لائیو اینڈ کریے پھر ریسٹ کرنے ہیں سونے ہیں اللہ پاک خیر کرے بس انشاءاللہ صبح نماز ٹائم اٹھا گے تیاری کر کے ڈیوٹی سے انشاءاللہ رہی زندگی تو پھر کل اس ٹائم ویکھی جائے گی
پھر ویکھنے کی بندا ہے جی کی صورت حال احوال ہوندی ہے۔ بہت مہربانی شکریہ جی، اللہ حافظ۔ جڑا بندہ مطلب جا چکیا ہے یا اللہ حافظ کر کے جانا چاہتا ہے تو وہ لائیو وچ تسی اللہ حافظ تو بول دیتا ہے، لائیو وچ تسی تھوڑا جہا انج پاسے نو ہو جاؤ گے تو مینوں بھی پتہ چل جائے گا کہ بھی بندہ کوئی میری لائیو تے نہیں بیٹھا، پھر میں اپنی لائیو اینڈ کر داں گا۔ علی گڑھ میں کہہ رہے کہ اللہ حافظ، بہت مہربانی شکریہ علی بھائی، اللہ سونے دی امان، اللہ نگہبان، اللہ پاک تانوں اپنی امان وچ رکھے۔ اگر کوئی سی سی ٹی وی بیٹھا ہے تو ٹھیک، اگر اس علاوہ اگر مینوں کوئی سن رہا ہے تے میری لائیو نو سکپ کر دے تاکہ میں بعد وچ اپنی لائیو اینڈ کر سکاں۔ اوکے ہو گیا جی، اللہ حافظ۔ میرے خیال ہے ہن کوئی سی سی ٹی وی بیٹھا ہے یا کوئی تقریباً سارے چلے گئے، سارے چلے گئے۔ اوکے ہو گیا جی، اللہ حافظ۔ اللہ سونے دی مان رہی زندگی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب تک اپنا کرم فرمائے، رحم فرماوے۔ جو مسلمان پریشان حال نے اللہ پاک سب دی پریشانی دور فرمائے۔ جو مسلمان گھراں چ جتے تے بیمار نے اللہ پاک سب نوں شفا کلی عطا فرماوے۔ جو لوگ بروزگار ہیں اللہ پاک انہاں رزق حلال نصیب عطا فرماوے، اور جو لوگ بے نمازی نے اللہ پاک انہاں پانچ وقت نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرماوے، نماز قائم کرنے دی توفیق عطا فرماوے، اور جو لوگ امت مسلمان بے اولاد ہے اللہ پاک انہوں نے کرونا سال عطا فرمائے۔ خصوص بالخصوص طور تے اللہ پاک فلسطین دے مسلماناں تے اپنا فضل فرماوے، رحم فرماوے۔ اللہ پاک غیب دی امداد فرماوے انہاں واسطے، اور ساڈے مسلمان حکمران اللہ پاک غیرت دینی عطا فرماوے، اور جذبہ ایمانی عطا فرماوے، جذبہ جہاد عطا فرماوے اللہ پاک دی ذات۔ اور جو بھی ساڈے حق اندر بہتر اللہ پاک اس تمام امت مسلمان دے حق وچ بہتر فرماوے اور عطا فرماوے، اور جو اسی نہیں مانگ سکے بن منگے اللہ پاک دی ذات اپنے غیب دے خزانے چوں ساڈے حق اندر عطا فرما دے سانوں۔ بشر بھائی کہتے ہیں کہ اجازت چاہتے ہیں، نعیم بھائی اللہ حافظ جی، بہت مہربانی شکریہ جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بشر بھائی اگر آپ مجھے سن رہے ہیں، اگر کوئی اور میسج نہیں ہے تو آپ لائیو کو چھوڑ دیں، سکپ کر دیں، تاکہ پھر مجھے پتہ چلے کہ میری لائیو پہ بندہ کوئی نہیں بیٹھا اور میں بھی اپنی لائیو کو اینڈ کر دوں۔ جب تک مجھے واچنگ شو ہوگی تو پھر میں انتظار میں رہتا ہوں کہ بھی کوئی بندہ کوئی رہ نہ گیا ہو جس کی کوئی بات ادھوری رہتی ہو۔ سب بندے میری لائیو میں سے چلے جائیں گے تو میں نے اپنے طور پہ جو کچھ مانگ سکتا تھا اللہ سے میں نے اختتام بھی دعا بھی کی ہے اللہ پاک سے سب کے حق کے لیے۔ اللہ پاک جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور دے گا۔ جلدی جلدی کرو جی، جلدی جلدی، اس طرح نہ بیٹھو۔ اگر کوئی بیٹھا ہے تو یا تو کوئی کمنٹس کرو تو یا پھر برائے مہربانی لائیو نو چھوڑ دو تاکہ میں جڑا ہے اپنی لائیو اینڈ کر سکاں۔ ٹائم کافی ہو گیا، ہن مینوں بھی نیند آن لگ پئی، میں بھی ریسٹ کرنا، ہزاری گل ہے، انسان ہے۔ مشر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اور نہیں بھائی میرا کوئی سکوٹی کا بنوائیں کرنا جاؤ کا بندوبست۔ جی جی مبشر بھائی مجھے یاد ہے، لیکن ابھی کو بنے تو پھر ہے نا پیارے بھائی، کیا کریں یار، اب حالات اس قسم کے ہو چکے ہیں، میرے ذہن میں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، جہاں کہیں بھی کوئی جگاڑ لگا کوئی موقع بنا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ مبشر بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ حافظ جی، بہت مہربانی شکریہ، اللہ حافظ ہو گیا جی۔ اب آپ واٹس ایپ پہ آ جانا، مبشر بھائی کو بات ہو تو میں ادھر آپ سے بات کر لوں گا، ابھی لائیو کو اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ یہ ون حضرات جو میری لائف میں بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی یا تو کمنٹس کرو چاہے، یا پھر جو ہے نا برائے مہربانی آپ میری لائف کو چھوڑ کے چلے جائیں، جو کوئی بھی ہے۔ بشر بھائی آپ میسج کر کے ڈیلیٹ نہ کیا کریں یار، غلط صحیح جو بھی ہو جاتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی کوئی گندی بات نہ ہو، ٹھیک ہے، جو کوئی غلط ٹائپ ہو جائے یا کوئی اس طرح کا ایشو بن جائے تو آپ میسج ڈیلیٹ نہ کیا کریں، میسج ڈیلیٹ کرنے سے بڑا مسئلہ بنتا ہے یار۔ اور آپ مجھے سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سن رہے تو میں جو ہے میسج آپ کو واٹس ایپ پہ بھی سینڈ کروں گا۔ پھر وہی کام کر رہے ہیں یار آپ، پھر میسج پہ میسج ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں، بشر بھائی یہ کیوں کر رہے ہو یار؟ میسج ڈیلیٹ نہیں کرو یار، آخری ٹائم میں اور آپ بھی میسج ڈیلیٹ کرنا شروع کر دیا آپ نے، ایسا مت کرو پیارے بھائی، یہ کوئی مذاق ہے؟ اگر میری لائف میں کوئی نیو آ رہا ہے تو بھئی آ کے کمنٹس کریں تاکہ پتہ چلے کہ کون ہمارے ساتھ شامل ہوا ہے، ہم ان کا استقبال کر سکیں، ان کو ویلکم کریں، ادروائز میں اپنی لائف کو اینڈ کرنے لگا ہوں۔ اب مجھے بھی نیند آ رہی ہے، تو سمی آرام فرماؤ تو میں بھی آرام فرماؤں۔ اوکے ہو گیا جی، اوکے، کسی نے میسج تو کرنا کو نہیں، بس میں اپنی لائف اینڈ کرنا ہوں۔ اوکے ہو گیا، اللہ حافظ۔